Good evening, sir.
Am I audible? Am I audible now? Yes. Yes, sir. It's a little feeble, but Yes, sir. Okay. So let's begin. आज देखेंगे ICs. Okay. So before moving ahead, कौन सी ICs पता है? Which ICs do you know? so 7447. I Seven. think it's the BCD2 7 segment decoder. Uh, which one? 7447. 7447. BC2 decimal Yes, decoder. sir. And There are a few more. 7495, I remember. 595, I think. Huh? 7495. I mean, we have used there few in our lab classes. 7495. I don't remember exactly their functionalities. In short, mostly you have used most of the 74 series ICs in the lab. Yes, sir. You have done Yes, the sir. experiment, right? Other than that, so let me generalize it to this one is op amps, and the other one was like not all of them, but mostly gates. And anything else? Sir, I use this. I think I don't remember what it's called, but L293D. Yeah, motor driver. Yes, motor drive. I used it for one of our projects. Yeah. Okay. Anyone else? Anything? इसके अलावा कोई आईसी पता है दैट यू नो कि ठीक है ये चीज है और ये आईसी होती है? आई नो बट यूज नहीं किया. ठीक है. सो So देखिए does LM 555 does that count as nice? LM. LM 555, this timer one. Yeah. So yeah, that is also nice. So we are going to use timer, one of the op amp, and one of the voltage regulator. This we are going to use later in the course to control the motors. Other than that, we are going to use many other ICs. For example, HML, which will be the microcontroller, right? So 555 timer IC, op amp. Instead of 741, we are going to use something else, and there will be one voltage regulator. These three we are going to use we are going to cover in this particular chapter, right? Integrated circuits. Now, obviously, most of the things are not there in the syllabus right now in the form of integrated circuits. But what do you know about it? So I think they are like miniaturized circuits, simple term. I mean, they are all embedded into a single chip. Miniaturized circuit in circuit diagrams inside a small thing, basically chip. Yes, sir. Okay. So right now it's like in bachelor's there is not much about integrated circuit because the technologies are like VLSI and those things, which itself is a domain. Right? If you do MTech or something, so you have an option to choose the VLSI. So the way they are created and generated is using those concepts. Okay. So for example, we are going to create circuits. We are going to make the circuit, and you have an options to basically we are going to make it on breadboard or coded PCB or printed circuit boards. But we have an option sometimes to miniaturize them in the form of IC. Okay. So generally logics implemented on a very small fabricated chip, silicon chip. So we generally call them ICs. For example, this one. Okay, not this one. So this is a circuit diagram of a 555 IC, just 555 timer IC. So 555 IC is like कि टाइम कंट्रोल करने के लिए किसी ने डिजाइन किया था. ठीक है. सो इज देयर एनीवन जिसने 555 को आज से पहले कभी नहीं सुना? 555 टाइमर आईसी के बारे में कुछ नहीं पता? सबको पता So है? it was mentioned in class earlier.
ओके, तो मैं फिर डिटेल में बताऊंगा। सो इट्स लाइक कि एक आईसी है विच मीन्स अर्ली डेज में तो आईसी होते ही नहीं थे, ट्रांजिस्टर बने, लोग ट्रांजिस्टर से सर्किट बनाने लगे। जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज कर करके सर्किट बनाते थे तो सर्किट बड़े हो जाते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन होता है, जैसे तुम्हारे वॉशिंग मशीन में देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि just a minute, let me open it here. कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि तुम नॉब घुमा के सेट कर देते हो कि ठीक है कितनी देर के लिए मोटर ऑन होनी चाहिए। तो देर इज अ टाइम एप्लीकेशन राइट, कि 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ऐसे बहुत सारे जगहों पे टाइम एप्लीकेशन होता है। तुम्हारा वॉच काइंड ऑफ टाइमर की टाइम एप्लीकेशन के बेसिस पे डिसाइड करता है, मतलब बहुत सारे अलग मेथड है, बट देर इज अ रिक्वायरमेंट जहाँ पर टाइम एप्लीकेशन की नीड होती है कि कितनी देर के लिए कोई चीज ऑफ होनी चाहिए, कितनी देर के लिए कोई चीज ऑन होनी चाहिए। ठीक है, ऑन ऑफ का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए। तो दो थिंग्स की रिक्वायरमेंट तो थी, बट ट्रांजिस्टर यूज कर करके बनाते थे, फिर किसी ने एक स्टैंडर्डाइज डिजाइन बना दिया। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइमर यूजिंग ट्रांजिस्टर इमेजेस एंड लेट मी यहाँ पे आगे DIY लगाते हैं। Just a minute। जैसे कि ये, तो दिस थिंग, ये जो इतने सारे ट्रांजिस्टर्स यूज कर करके दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, दिस सर्किट, ये ट्रांजिस्टर 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 थोड़े बहुत रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटर यूज करके उसने जो चीज इंप्लीमेंट की, दिस थिंग इज देयर इनसाइड दिस स्मॉल आईसी विच इज नथिंग बट 555 टाइमर आईसी विच कैन डू द सेम टास्क। ये बड़ा वाला सर्किट भी वही करेगा, ये छोटा वाला सर्किट भी वही करेगा, एंड इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इज दिस, ये जो मैं पीपीटी में दिखा रहा था, दिस थिंग। ठीक है, इफ यू मेक दिस ऑन ब्रेड बोर्ड और डॉटेड पीसीबी कहीं पे, यू विल गेट अ सर्किट विच कैन परफॉर्म वॉट एवर दैट 555 कैन परफॉर्म। सो अल्टीमेटली आईसीज में क्या होता है, वी इम्प्लीमेंट दीज टाइप ऑफ सर्किट डायग्राम्स इनटू अ वेरी स्मॉल चिप, एक छोटे से सिलिकॉन चिप पे होता है। ठीक है, सो दिस इमेज इज ओवरलैपिंग, सो जस्ट मैं इसको ठीक कर देता हूँ सो दैट इट विल बी able to see। ठीक है, so set of electronic circuit on a small flat piece of सेमीकंडक्टर जनरली सिलिकॉन, ये इंटीग्रेटेड सर्किट का डिफॉल्ट डेफिनेशन है। ठीक है, जनरली ऐसे दिखते हैं, मतलब ऐसे नहीं दिखते, और अंदर क्या दिखता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप के बड़े बॉक्सेस में इतना बड़ा दिख रहा है, इसमें से लॉजिकल सिर्फ इतना ही है, बाकी सारा एम्प्टी स्पेस है, यूजलेस। जस्ट इट इज बेसिकली डिजाइन टू बी बिगर सो दैट हैंडलिंग इजी हो जाएगा। ठीक है, दीज आर लाइक, ये जितना दिख रहा है ना इतना ही साइज इसका भी है, बट खाली स्पेसेस को हटा दिया सो दैट साइज स्मॉल हो जाए, बट हैंडलिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो दिस पार्ट इज लाइक सिलिकॉन पेपर पे सर्किट इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, वहां से जो भी कनेक्शन बाहर आने थे गोल्ड वायर के थ्रू बाहर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस गोल्ड वायर, ये यहाँ आया है, ये यहाँ आया है, गोल्ड वायर के थ्रू फिर किसी मेटल पीस ऑफ पिन पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, एंड देन वी कैन एक्सेस दीज पिन टू कम्युनिकेट इनसाइड, कि अंदर से कनेक्शन को बिल्ड करना है, देन डू वट एवर यू वांट। ठीक है, सो जनरली आईसीज ऐसी नहीं आती है, पूरी की पूरी पैक्ड आती है। ठीक है, एंड दिस ब्लैक पार्ट इज नथिंग बट अ ऑक्सी प्लास्टिक के मटेरियल्स टू protect these semiconductors from external environments and dust। ठीक है, so if I go here and search for IC, मतलब integrated circuit, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा पहले कभी कभी होता था, आजकल ऐसी ऐसी नहीं आती है, ऐसी आती है कंप्लीटली सील्ड। इसको रब या फिर ग्राइंड कर करके दिस पार्ट इज एक्सपोज सो दैट वी कैन सी। ठीक है, एंड व्हाट इज देयर इनसाइड दोस थिंग्स, लेट्स सी, गूगल पे मिलेगा। पीस, दिस पीस। ठीक है, सो बेसिकली और थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो दिस, so basically blocks are there and each block has a very specific function। so maybe just by the look I can say कि ठीक है ये mostly MOSFET वगैरह होगा। ठीक है, by look this is like mostly inductor और resistance। ठीक है, this is short resistance। ठीक है, इंडक्टर होता तो ऐसे कॉइल बनाते। तो यूजिंग द डोपिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर सेमीकंडक्टर है और उसमें मैंने डोप कर करके कंडक्टिविटी बिल्ड कर दी, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू वायर। ठीक है, डोपिंग का सीक्वेंस या पैटर्न चेंज किया कि कहाँ पर ज्यादा डोप होगा, कहाँ पे कम डोप होगा, तो आई एम क्रिएटिंग अ ट्रांजिस्टर राइट। ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट डोपिंग एरिया को कंट्रोल कर करके तुमने
एन और पी क्रिएट किया था। तो देयर विल बी सम सिंपल थिंग्स, सम कॉम्प्लेक्स थिंग्स। तो यहाँ पे दिस इज सम ऑफ द आईसी, दिस इज माइक्रो कंट्रोलर वाला पार्ट है। बाय लुकिंग एट द पिंस मुझे लग रहा है कि ये माइक्रो कंट्रोलर है और कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सिंपल आईसी, दिस इज 555, ठीक है। लॉट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, कुछ कुछ रेजिस्टेंसेस चिप के ऊपर फैब्रिकेट किया हुआ है, ओके। तो द वे इट हैपेंड कि पहले ट्रांजिस्टर्स आए, ट्रांजिस्टर से सर्किट बनने लगे, लोग बहुत खुश थे। बट ट्रांजिस्टर से जब सर्किट बनाते हैं तो साइज बड़ा होने जाता लगता है। और जो लोग बिल्ड कर रहे थे उनको तो पता ही है कि ट्रांजिस्टर का साइज इज लेट्स से एफ एक्स। अगर ट्रांजिस्टर का साइज इज एक्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाइट, विड्थ एंड वॉल्यूम। तो इफ वॉल्यूम इज एक्स, एक्चुअली जो मटेरियल है ट्रांजिस्टर का लॉजिक, दैट विल बी लाइक एक्स बाई 50, एक्स बाई 100, उतना ही वॉल्यूम उसका है। तो 50 टाइम्स ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, बिकॉज हैंडलिंग ईजी हो, लोग शोल्डर कर पाए। तो धीरे धीरे ये लॉजिक बिल्ड हुआ और ये सोचा कि अगर उसे पूरे ट्रांजिस्टर के सेट्स को, कि लोग जनरली किस टाइप के आईसी यूज करते हैं, ठीक है, गेट्स यूज करते हैं, ऐसे डिफरेंट एक्स नंबर ऑफ सेट्स यूज करते हैं। तो उन एक्स नंबर ऑफ सेट्स को अगर हमने एक ही वेफर पे बना दिया, तो इट विल बिकम ईजियर और स्मॉलर, ठीक है, कॉस्ट वाइज भी सस्ता हो जाएगा एंड साइज वाइज भी स्मॉल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट दैट डिड। पहले तो ये लॉजिक बिल्ड हुआ, लॉजिक को फैब्रिकेट करने के लिए जब तक वो मशीन नहीं थी तब तक नहीं बना। जब ऐसी मशीन आ गई जो एक ही वेपर पे अलग अलग टेक्नोलॉजी, मतलब अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो आईसीज बनने लगे, ठीक है। एंड तो बेसिकली हो, मतलब बोलने के लिए इट्स लाइक कि ट्रांजिस्टर से लोग गेट्स बनाने लगे, ठीक है। फिर गेट्स का साइज बड़ा होता था तो लोगों को लगने लगा कि एक काम करते हैं, ये 10-15 टाइप की तो सर्किट साइकिल्स लगती है लोगों को, इनको ना हम एक ही चिप पे फैब्रिकेट कर देते हैं। और फिर उन्होंने वहां से आईसीज बिल्ड की, और एक बार आईसीज बिल्ड होने लगी, टेक्नोलॉजी अच्छी होने लगी, तो बहुत सारे टाइप के लॉजिक्स आईसीज के फॉर्म में आने लगे, ठीक है। तो आज के दिन तुम गूगल करोगे आईसी बाई, तुम्हें बहुत सारे टाइप के इंटीग्रेटेड सर्किट मिलेंगे। तो माउजर डॉट इन इज लाइक एन गुड, मतलब इसका कॉम्पोनेंट्स का अमेजोन, ठीक है। बट जनरली माउजन और इन सब से इम्पोर्ट करना पड़ता है, फॉरेन से आता है। सो लिटिल बिट हेक्टिक एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली होता है। सो देर आर अदर ऑप्शन इफ यू वांट टू परचेज कॉम्पोनेंट, जैसे कि मिक्सर, ठीक है। सो यू विल गेट कॉम्पोनेंट हियर ऑल्सो। बट माउजर इज लाइक सालों से एक प्लेटफॉर्म के टर्म्स में बिल्ड हुआ है, तो यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छे से मिलेगा। सो हियर वी कैन गो एंड क्लिक ऑन समवेयर, अगर कहीं पे इंटीग्रेटेड सर्किट मिले तो, ठीक है। व्यू ऑल प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब कैटेगरी में इंटीग्रेटेड सर्किट मिले, ये रहा, ठीक है। इफ आई क्लिक ऑन दिस कैटेगरी, so there are so many different subcategories and 3,66,000 different type of parts अवेलेबल है। मतलब मैं क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूँ, 3,66,000 ऑफ माउजर के पास अलग अलग टाइप के आईसीज अवेलेबल है, ठीक है, क्वांटिटी नहीं। जैसे कि ये कोई एक पर्टिकुलर टाइप का है, ये कोई एक पर्टिकुलर टाइप का है, ऐसे अलग 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 टाइप ऑफ आईसीज है। तो आजकल इतनी सारी टाइप ऑफ आईसीज आती है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट के लिए कोई ना कोई आईसी अवेलेबल होगी। बट इट, अब Yes, sir. आईसी, जैसे हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में पैकेज की बात की थी, वैसे आईसीज में भी पैकेज की बात होती है। आईसीज में पैकेज इज लाइक मोर क्रिटिकल, बहुत सारे टाइप के आते हैं और बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट की, जैसे रेजिस्टेंसेस में पावर ज्यादा था, साइज बड़ा हो गया था। सिमिलर हैपेंस विद द इंटीग्रेटेड सर्किट, ज्यादा करंट या ज्यादा पावर कैपेबिलिटी वाली आईसी है, साइज बड़ा होगा, मेटालिक पार्ट अटैच हो जाएगा, मेटालिक पार्ट अटैच होने के बाद मेटालिक पार्ट की साइज बढ़ती जाएगी, हीट सिंक्स लगाने की जगह होगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ आईसीज के पैकेजेस हैं। सम ऑफ देम आर हियर, फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर का पैकेज है ये, ठीक है। तो ये आईसी का नहीं है, बट मैंने जनरलाइज पैकेज का सर्च किया था तो यहाँ पे मिल गए थे। बट ये सब आईसीज के पैकेज हैं, कुछ को छोड़ दो तो, ठीक है। दिस लाइक ये बोल सकते हैं आईसी है, नहीं है, ट्रांजिस्टर का वेरिएंट है, बट जनरली इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में मिलता है कि आईसी जैसा फील होगा, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ आईसी के पैकेजेस। डी पैक, ये डीप इज द मोस्ट कॉमन वन जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद असेंबली में ऐसे मिलते हैं और बहुत सारे और भी मिलते हैं, ठीक है। सो पैकेजिंग विल बी वन ऑफ द थिंग रिगार्डिंग द आईसी। हम लोग सेलेक्ट करेंगे आईसी को, द पैकेज will be important. For example, 555 timer IC by India.
अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो आई गेट दिस दोनों 555 टाइमर आए। डिफरेंस क्या है, ये DIP पैकेज है, थ्रू होल कॉम्पोनेंट, ये SMD पैकेज है, SMD कॉम्पोनेंट, और 8 पिन का है तो उस पैकेज का नाम है SOIC 8। ठीक है, तो ऐसे हर आईसी के अलग अलग पैकेज मिलेंगे। इवन यहाँ पे दो ही दिख रहे हैं, मैं अगर माउजर पे सर्च करता तो और भी पैकेजेस के हिसाब से और भी मिलते हैं। 555 टाइमर, ठीक है, तो 555 टाइमर के उसके पास, यहाँ पे जाते हैं टाइमर एंड सपोर्ट। तो यू सी ये सारे कैटेगरीज में 555 है। एंड कितने प्रोडक्ट फिल्टर किए उसने, 100 डिफरेंट टाइप ऑफ 555 है। इसमें पैकेज पे है, टेम्परेचर पे है, वोल्टेज पे, ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स ऑफ 555 मिलेगा। ठीक है, जैसे ये अलग दिख रहा है, मतलब दैट इज लाइक एनिमेटेड, बट दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ 555। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक हो जाएंगे। देर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ आईसी, वी वांट टू डिस्कस। एक तो ओपैम्प, ओपैम्प इज अ कैटेगरी जिसमें बहुत कुछ हो सकता है। फिर एक टाइमर, और एक है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर को आप आईसी बोलना है या ट्रांजिस्टर, तो इज लाइक मॉडिफाइड ट्रांजिस्टर टू कंट्रोल द वोल्टेज। ठीक है, बट जिस तरीके से मिलता है, जिस तरीके से यूज होता है, उसको मैं अभी आईसी की कैटेगरी में यूज कर रहा हूँ, या फिर गूगल कर लेते हैं। ठीक है, जो हम यूज करने वाले हैं वो है 7805। ठीक है, आईसी ट्रांजिस्टर ही मिल रहा है, मतलब वोल्टेज रेगुलेटर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इस लाइक डेटा सीख नहीं हुआ, थोड़ी देर में हम और स्पेसिफिक हो जाएंगे कि आईसी बोलना चाहिए, ट्रांजिस्टर बोलना चाहिए, बट इस द वे इट इज इम्प्लीमेंटेड, ये पूरा सर्किट उस छोटे से पैकेज में है, तो इसको आईसी बोलेंगे। ठीक है, बट बहुत ट्रांजिस्टराइज्ड है, बट अल्टीमेटली आईसी होगा क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिलकर के बनाए। तो बाय दैट डेफिनेशन वोल्टेज रेगुलेटर विल बी द आईसी। अब ये तीन देखने वाले हैं। थियोरेटिकली मोस्टली सब्जेक्ट्स में 741 पढ़ाते हैं, 555 पढ़ाते हैं, ये मोस्टली नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, 555 हम एज इट इज पढ़ेंगे। वोल्टेज रेगुलेटर में देयर इज अ वोल्टेज रेगुलेटर, 7805 हम पढ़ने वाले हैं। 7805 की जगह वी आर गोइंग टू रीड और यूज LM358। ठीक है, so let's go here, and the first thing that I will do is like 741, and उसका कोई wiki पेज होगा, let me open it। Hmm, हाँ, ये, ठीक है, फिर एक है LM358 wiki। हाँ, ठीक है, तो दोनों की विकी पेज ओपन कर लिया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का विकी पेज, और इसमें आई एम लुकिंग फॉर 741। बेसिकली आई वांट टू फिगर आउट कि 741 कब किया था, टू 741 कब कब डेवलप किया था, कब खोजा था। हाँ, 1968 बाई डेविड उलांगर, जो भी नाम है। ठीक है, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर ने 741 फर्स्ट टाइम डिजाइन किया था, मतलब एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैकेज में 741 से पहले भी और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट दिस वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो आज तक सिलेबस में चल रहा है। ठीक है, अगर तुम्हारी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस है तो मोस्टली पढ़ाएंगे। देन द सेकेंड वन जो हम यूज करने वाले हैं वो LM358 है। बहुत सारी कंपनीज बनाती है, ओरिजिनली नेशनल सेमीकंडक्टर ने बनाया था, और कब बनाया था वो मुझे गूगल कर, मतलब उसलिए मैं ढूंढ रहा था। नहीं लिखा है, लो पावर, बाहर की LM358 लॉन्च। ठीक है, तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है, मतलब द रीजन आई वॉज गूगलिंग इट कि ये बताना था
कि जो 741 है जो हम पढ़ते हैं सिलेबस में, इट इज टू ओल्ड डिजाइन, वेरी ओल्ड। ठीक है, LM358 इज मोर रिसेंट, मोर एडवांस। ठीक है, तो व्हेन यू कंपेयर 741 LM358 थोड़े डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बट LM358 इज लाइक वे एडवांस ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कम्पेयर टू द 741, और इसलिए हम LM358 यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो मतलब इज लाइक LM358 90s वगैरह का है, एंड 741 768 वगैरह का था। तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन टू द वे दे आर इम्प्लीमेंटेड एंड डिजाइन। ठीक है, सिलेबस में 741 है, इसलिए हम 741 पढ़ लेते हैं। अब टेल मी कि ओपैम किस किस को पता नहीं है। व्हाट इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर? सबको पता है, एवरीवन नोज कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। Yes, sir. यस सर। सही है। सुजल, सुजल है क्या? हाँ है। ठीक है, सुजल को पता है कि नहीं पता है? नहीं पता। हाँ नहीं पता, ठीक है। जस्ट ओके, तो हम पहले ब्रीफ कर लेते हैं। सो विल स्टार्ट विद दिस, देन दिस, देन दिस। तो आज के दिन बेसिकली हम ये तीन आईसीज के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे वो जो कि डेटा शीट कहलाती है। ठीक है, एंड देन हमें इनके अराउंड प्रैक्टिकल्स करना है। ठीक है, तो हम इसके अराउंड प्रैक्टिकल करेंगे, इन दोनों के अराउंड हम डिफरेंट वे में करने वाले हैं। ठीक? तो ओपैम का हम एक सर्किट बनाएंगे ब्रेडबोर्ड पे और कुछ करने वाले हैं, एंड देन 555 को हम अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड सिमिलरली 741 को भी अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बिफोर, मतलब अब हमें बेसिकली व्हाट वी वांट इज कि कोई आईसी यूज करके देखनी है, सो दैट वी गेट हैंग ऑफ कि आईसी क्या होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब खाना पीना। ठीक है, इज लाइक व्हाट वी से कि अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और कुछ खाने का मन है तो उसका मेन्यू अलग है, कुछ पीने का मन है तो उसका मेन्यू अलग है। ठीक है, सो विल फर्स्ट एक्सप्लोर कि आईसी क्या होता है वो देख रहे थे। अब उस मेन्यू में कैटेगरीज हैं। ठीक है, कि चाइनीज कैटेगरी अलग है, मेन कोर्स में पनीर अलग है, ऐसे अलग 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 कैटेगरीज हैं। सो आईसी इज समथिंग जो खाने के इक्विवेलेंट बोल लो। ठीक है, पीने के लिए और बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज, ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर, मॉसफेट वगैरह, ये सब जो भी पढ़ रहे थे, दोज वर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। आईसी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। अब आईसीज में बहुत सारी कैटेगरीज में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। ओपैम, टाइमर, वोल्टेज रेगुलेटर, इसके अलावा एक दिन हम माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे, मोटर ड्राइवर यूज करेंगे, एंड होपफुली और कौन सी यूज करने वाले होंगे। हाँ, एक दिन टेम्परेचर सर, नहीं टेम्परेचर सेंसर के लिए आईसी नहीं है, और कोई होगी, याद नहीं आ रहा। ठीक है, सो द वे आईसीज आर यूज और डिजाइन इसकी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, तो एक एप्लीकेशन है कि छोटी चीजों को बड़ा करना है, जिसे हम बोलते हैं एम्पलीफायर, जिसकी वजह से ये एम्प लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रांजिस्टर से तुम ये कर सकते हो। ठीक है, पर ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई करने के लिए थोड़ा हेक्टिक सर्किट बनाना पड़ेगा, और कुछ लिमिटेशंस होती है। उसको सॉर्ट करने के लिए ऐसे आईसी बनाए गए जो एम्पलीफाइंग बहुत अच्छे से कर लेंगे, और उन आईसी का नाम था ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मतलब बाय डिजाइन, बाय ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, दैट्स वाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर उनका नाम ही होता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑपरेशनल, मतलब एम्पलीफायर के लिए डिजाइन किया गया तो सिर्फ एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकता है। हो सकता है और तरीके से यूज करता है। ठीक है, और हो सकता नहीं है, होता है। तो जो ओपैम्प्स होते हैं बहुत और एप्लीकेशन पे यूज होते हैं, बट मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज एम्पलीफिकेशन। ठीक है, कि छोटे सिग्नल को बड़ा करना है, जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर। ठीक है, तो तुम्हारे सॉन्ग्स को एम्पलीफाई करने के लिए बोट वाला उस दिन एग्जांपल दिया था, राइट? तो बोट के अंदर एक ऑडियो एम्पलीफायर की आईसी लगी होगी, ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई नहीं कर रहे होंगे, ओपैम्प की आईसी होगी। ठीक है, ट्रांजिस्टर से बनाने में लॉसेस ज्यादा होते, कंट्रोल कम होता, और क्या बोलते हैं, नॉइस वगैरह को कंट्रोल कम कर पाते। ओपैम्प में वो सारी कंट्रोल्स थोड़े से बेटर मिल जाते हैं, बिकॉज जब तुम ट्रांजिस्टर से डिजाइन करते हो तो मैक्सिमम चीजें बाहर होती। ठीक है, तुम्हारे वो रजिस्टर और ये सब कुछ बाहर बाहर होते, पिन बाहर होते ट्रांजिस्टर के, जो ससेप्टेबल टू नॉइस होते, बाहर के किसी एनवायरमेंट से टच हो रहे हैं, राइट? और पैम्प में वो सब कुछ अंदर चला गया, मोस्ट ऑफ इट।
खाली कंट्रोल के लिए तुम्हारे हाथ में कुछ चीजें देनी थी, तो कुछ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस तुम बाहर से लगाओ एंड डिफाइन कि कितना एम्पलीफिकेशन चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द वे एम्पलीफायर इज डिजाइन। ठीक है, हम LM358 यूज करना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि LM358 यूज करना है, ये पता चल गया। ठीक है, मे बी गूगल करके, मे बी मैंने बता दिया। अब उसके बारे में जानना है कि होता क्या है, दिखता कैसा है, ठीक है, कितने का मिलता है, ये सब कुछ जानना है। तो द थिंग अबाउट आईसी इज कि अगर फर्स्ट LM358 मैंने तुम्हें बता दिया, तो फर्स्ट थिंग यू विल चेक बाय इंडिया, लिखिए कि इंडिया में मिलता है कि नहीं मिलता। इंडिया में मिल रहा है। ठीक है, मैंने कोई ऐसी आईसी बता दी होती जो इंडिया में नहीं मिलती, हो सकता है वो पैन था, बट इंडिया में नहीं मिलता। ठीक है, तो फायदा नहीं है पढ़ के। ठीक है, पढ़ के। सो पैम्प इज अ कैटेगरी जिसमें तुम्हें मतलब 400-500 डिफरेंट टाइप के आईसीज तो मिल ही जाएंगी। मैं 741 जो सिलेबस में था, 358 जो मैंने बताया था, एक आता है PL250 या 350, 250। ठीक है, 358 पढ़ रहे हैं, 358 का एक बड़ा भाई आता है, उसका नाम है 324। ठीक है, मतलब चार मैं कैटेगरी बता रहा हूँ। अब अगर ये चार आईसीज ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर एक होगा, जैसे मैंने LM358 गूगल किया था, वैसे मैं गूगल कर रहा हूँ PL250 या 350, 12-250। PL350, बट व्हाट आई एम डूइंग इज लाइक मैं store.in में जाके वो काम सर्च कर लूंगा। सो 741 LM358 LM358 CH61 T0 को पैम्प है, रियल नहीं है। PL250 ऑप्टो कपलर है, हाँ तो पैम्प नहीं है। ठीक है, सो CH3130 PL250 हटा देता है। ठीक है, 3130। तो अब मैं ये सर्च कर रहा हूँ, मतलब यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे तो है जो दिखाना था। सो फर्स्ट थिंग दैट आई विल नोटिस इज कॉस्ट। ये 12 रुपए का है, ये 8 रुपए का है, ये 12 रुपए का है, ये 30 रुपए का है, एंड एक और है नीचे LM358 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का ओरिजिनल, ये 15 रुपए का है। ठीक है, मतलब 14.99। सो if you are designing something that will be cost sensitive, this will be much better। ठीक है, LM358 दिस इज जेनरिक, चाइना में बनेगा। दिस इज टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, एक कंपनी है, उसका ओरिजिनल होगा। ओरिजिनल और चाइना मतलब दोनों किसी कंपनी ने डिजाइन किया है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट सीम्स मोर रिलायबल। चाइना के साथ किसी कंपनी का नाम लिख के नहीं आता, तो तुम किसी को फोन करके गाली नहीं मार सकते अगर तुम्हारा सर्किट नहीं चला। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के केस में तुम फोन करके गाली मार सकते हो और फोटो भेज सकते हो कि देखो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की आईसी है और नहीं चल रही, तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। तो यू कैन चूज ₹8 या ₹15 वाली आईसी, बट इस वाले को चूज करने की नीड नहीं है अगर तुम्हारा काम 8 रुपए से हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट सेंसिटिवनेस विल बी द फर्स्ट थिंग। सेकंड विल बी फीचर, क्या फीचर चाहिए। ऑब्वियसली ये 30 रुपए का है, इसकी फीचर ज्यादा होंगे, लो पावर होगा, मे बी स्पीड ज्यादा होगी, ये सारे फीचर्स मैच हो जाएंगे। ठीक है, इस कैटेगरी में 741 इज देयर ओनली बिकॉज सिलेबस में पढ़ाया जाता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो अब आईसीज में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, वन वे टू सिलेक्ट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें किसी ने बोला कि तुम्हारे सर्किट में ऑडियो एम्पलीफाई करना पड़ेगा, ओपैम्प खरीद दो, तो ओपैम्प बाय इंडिया लिखूंगा तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड देन यू विल डिसाइड कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, ये वाला 25 रुपए का है, ये वाला 9 रुपए का है, तो तुम बोलोगे कि ठीक है 9 वाला खरीद लेता हूँ। दैट विल बी वन लॉजिक। अदर मोर लॉजिकल लॉजिक विल बी टू फिगर आउट कि तुम्हारा नीड क्या है, और वो नीड ये आईसी सेटिस्फाई कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। ठीक है, वो नीड को समझने के लिए यू हैव टू गो टू द यूजर मैनुअल, जिसको बोलते हैं डेटा शीट। तो अब मैं टाइप करूंगा LM358 डेटा शीट। ऑब्वियसली टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकल मतलब, तो मैं किसी भी एक आईसी का LM358 डेटा शीट ओपन कर लिया। ठीक है, ये ऑन सेमीकंडक्टर का है, ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है। हो सकता है कंपनी टू कंपनी थोड़े फीचर्स वेरी हो जाए। ठीक है, हम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का देख लेते हैं। दिस इज मोर स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा शीट। दिस इज मोर इजियर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा शीट। ठीक है, तो हम कॉम्प्लिकेटेड वाला देख लेते हैं, क्योंकि आज मैं बता रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट टाइम से तुम इजी वाला देख लेना।
तो दिस इज द डेटा शीट। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कंफ्यूजन है कि 741, तो मैं 741 डेटा शीट भी खोल लूंगा, ठीक है, और ये भी खोल लूंगा, दोनों टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की मिल गई, ठीक है। और फिर इनके बारे में जो भी चीजें होंगी वो मुझे इस डॉक्यूमेंट में मिलेगा, इस डॉक्यूमेंट के बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आई कैन रीड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर आईसी हियर, कि कितनी पिंस है, ठीक है, कितने वोल्टेज पे वर्क करेगा, मतलब मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट आने में कितना टाइम लगेगा, कितना करंट कंज्यूम करेगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये सब इनको इस डॉक्यूमेंट में मिलता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट डेटा, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू कंपेयर कि LM358 और 741 में क्या डिफरेंस है, तो जो डिटेल में पढ़ने लगो और तुम्हें डिफरेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस तुम्हें कहाँ मिलेगा, रेटिंग्स वाले डिफरेंसेस में मिल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज से पहले डेटा शीट ओपन किया क्या किसी ने, मतलब इवन इस कोर्स में हमने पहले ओपन किया क्या डेटा शीट? डेटा शीट रीड करना आता है क्या? मोर लॉजिकल क्वेश्चन। Sir, a little bit. Like we did it for one of our classes, but it was only we did not have to pay attention to temperature or anything. या It was just like general idea. या सही है, ठीक है। विश्वन ने ओपन किया है, क्यों ओपन किया था, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? डिजिटल लैब मतलब टीचर्स ने ओपन करवाया था क्या? Yes, sir. We were made to open, though we did not use it in anything. They just showed us what a data sheet looks like. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हम भी वही करेंगे, ठीक है। बट क्या बोलते हैं, इन बिटवीन सम टाइम हम कभी कभी खोल के देख लिया करेंगे जब डाउट्स आएंगे। तो द होल पर्पज ऑफ डेटा शीट ही, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे LM358 का जितना रिक्वायरमेंट है और मुझे उतनी चीजें याद है, तो डेटा शीट इज यूजलेस, फालतू में कॉम्प्लिकेट करेगा। बट इफ आई गेट अ डाउट, ठीक है, तो मतलब लेट मी गिव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल इज कि 555 टाइमर आईसी मैंने यूज किया है। तो द फंडा ऑफ 555 टाइमर आईसी के तुम उसको कुछ कुछ मोड में सेट कर सकते हो, और फॉर अ माइनिंग प्रोडक्ट जो हम लोगों ने डिजाइन किया था, रिक्वायरमेंट फॉर दिस कि 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑन करनी थी, 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑफ करनी थी, ऑन ऑफ, ठीक है। आई नो 100% ये टेबल 5 टाइमर से होता है, अनस्टेबल मोड करके उसका एक पर्टिकुलर सर्किट पैटर्न होता है, वैसे डिजाइन कर दिया। इट कैन जनरेट अ वोल्टेज, इसको पावर दे दो, ये ऑन ऑफ करता रहेगा, 1 सेकंड के लिए ऑन, 1 सेकंड के लिए ऑफ, इसके आउटपुट से एलईडी कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। सो एज अ सर्किट कोई डाउट नहीं, मुझे डेटा शीट की जरूरत है नहीं। बट एक रिक्वायरमेंट और थी उसमें, द रिक्वायरमेंट वॉज कि 2 पेंसिल सेल से ही वो सर्किट पावर होना चाहिए, ठीक है। इट वॉज अ प्रोडक्ट जो कोल माइन में जाने वाला था। कोल माइन में तुम सर्किट नहीं ले जा सकते, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। अगर तुम्हें ले जाना है तो यू हैव टू गेट इट सर्टिफाइड कि तुम इस सर्किट को अंदर लेके जाओगे तो एक्सप्लोड नहीं होगा। सर्किट तो ले ही नहीं जा सकते, सर्किट मतलब नॉट अलाउड, यू कैन टेक योर प्रोडक्ट इनसाइड, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट किसी एनक्लोजर में पैक्ड होगा, ठीक है। उस पैकेज प्रोडक्ट को तुम अंदर लेके जा सकते हो, बट पहले सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि ये इन्फ्लेमेबल एनवायरमेंट्स में, एक्सप्लोसिव एनवायरमेंट्स में एक्सप्लोड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस सर्किट को पेट्रोल में डाल दिया तो आग नहीं लगेगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, पेट्रोल इज लाइक वेरी लेस एक्सप्लोसिव एज कम्पेयर टू द कोल डस्ट जो कि कोल माइन में होता है, ठीक है। तो जब ये बात आई तो देर वॉज अ लिमिटेशन कि तुम कितना वोल्टेज यूज कर सकते हो, एंड इन आर केस 2 पेंसिल सेल यूज कर सकते हैं। पेंसिल सेल सबको पता है, जो रिमोट में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, क्योंकि आज तक मैंने जब भी 555 टाइमर आईसी यूज किया है तो या तो 9 वोल्ट की बैटरी से यूज किया, या तो लैपटॉप से 5 वोल्ट सप्लाई आता है वैसे यूज किया है, कभी मैंने 3 वोल्ट पे यूज किया ही नहीं था। एंड देर इज अ लिटिल बिट मोर ट्रिकियर टास्क कि जब पेंसिल सेल फुल चार्ज होगा तब वो 3.5 के अराउंड वोल्टेज देगा, धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होकर वो 2 वोल्ट तक जाएगा। तो इस पूरी रेंज में वो काम करना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि फुल चार्ज था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मतलब जब फुल चार्ज होगा तो वो 3.5 वोल्ट होगा, धीरे धीरे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। एक दिन आएगा जब वो 3 वोल्ट के नीचे जाएगा, 2.9 वोल्ट पे जाएगा, ठीक है, फिर 2.5 पे जाएगा, 2.6 पे जाएगा, 2 वोल्ट पे जाएगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर और लो पे जाएगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3.5 से 3 वोल्ट पे काम करता है, जिस दिन वो इसके नीचे चला गया सर्किट बंद। तो मतलब लाइफ बहुत कम है, वर्सेस कि मैंने एक सर्किट डिजाइन किया विच कैन वर्क फ्रॉम 3.5 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट। अगर वो इस वोल्टेज रेंज पे काम कर पाता है, देन इट मीन्स
कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा. सो दैट वाज अनदर रिक्वायरमेंट कि द प्रोडक्ट वाज इन सच अ वे कि एक बार इंस्टॉल कर दिया तो निकाल नहीं सकते हैं, बैटरी वैटरी चेंज करना अलाउड नहीं है. ठीक है, तो वो माइंड में लटका रहेगा. 2 साल तो मिनिमम उसकी बैटरी बैकअप लाइफ होनी चाहिए. ठीक है, तो मैं जो प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, लेट मी गो एंड टेल यू, दिखा दूँ बस कि कैसा होता है, सो इट विल बी मोर रिलेटेबल. सो मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ वो इसलिए सुना रहा हूँ कि ऐसे केसेस में डेटा सीट इंपॉर्टेंट हो जाता है. अदरवाइज तुम्हें अगर चीज़ें याद है तो तुम्हें नीड नहीं है. ठीक है, काम चल जाएगा. पर जब डाउट आएगा तो डाउट का आंसर कहाँ मिलेगा? डेटा सीट्स में. सो दिस इज द प्रोडक्ट, वन ऑफ द वर्जन जैसा दिखता था. लिस्ट किया कि नहीं, let me check. क्या जस्ट मिनट, मैं खोल ही देता हूँ और जस्ट होगा मोमेंट तुम्हें वेबसाइट समझ में आएगी. ओके, तो दिस इज द प्रोडक्ट. ठीक है, जो उसका यूजर मैनुअल है और होपफुली ये बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द डिवाइस जिसमें दो एलईडी हैं. वेरी सिंपल. रूफ मूव हुई कोल माइन में तो गिरने से पहले ये मूवमेंट जब स्टार्ट हो गई, 5 mm से ज़्यादा मूवमेंट हो गई तो ये ब्लिंक होना शुरू कर देगा. एंड माइंस में जो जनरली काम करने जाते हैं वो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, बट इतना सबको समझ में आता है कि रेड लाइट मतलब डेंजर, मत जाओ. और माइंड में पिच डार्क अंधेरा होता है तो बहुत दूर से दिख जाता है, 100-2 मीटर डिस्टेंस से दिख जाता है कि ठीक है एलईडी चालू हो गई है. ठीक है, तो द रिक्वायरमेंट वॉज कि 2 पेंसिल सेल पे चलना चाहिए. फिर मतलब फर्स्ट लिमिटेशन वाज कि 2 पेंसिल सेल मतलब मैक्सिमम 3.5 वोल्ट. सेकेंड रिक्वायरमेंट वाज कि 2 years का बैकअप होना चाहिए. और एक बार ऑन हो गया तो 30 days तक कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग होनी चाहिए. तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स में अब ये बहुत ही क्रिटिकल हो गया था कि मेरा जो भी आईसी होगा 555 वो 3.5 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक तो चले कम से कम. दिस इज फुल चार्ज, दिस इज लीस्ट चार्ज. तब मुझे डेटा शीट खोल के देखना पड़ेगा कि 555 टाइमर आईसी कितना वोल्ट सपोर्ट करती है. तो फिर मुझे पता चला कि यार जितनी भी 555 टाइमर आईसी है जनरली जो आज तक मैंने यूज की थी, और दिस वन, कोई और ये वाला पहले ओपन करके दिखाता हूँ. ठीक है, ये सारी मैंने जो भी यूज की थी ये सब 5 वोल्ट से काम करती है. दिख रहा है लिखा हुआ है सप्लाई 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट. ये तो 3.5 वोल्ट पे तो चलेंगी ही नहीं. और एक टेबल होती है जहाँ पे वोल्टेज लिखा रहता है, ये रहा रिकमेंडेड 4.5 से 16 वोल्ट, मतलब पेंसिल सेल तो काम करेगा ही नहीं. फिर ढूंढ ढांड के एक आईसी ढूंढी गई जो 555 भी है, बट इट इज डिजाइन स्पेसिफिकली टू वर्क ऑन लोअर वोल्टेजेस. ठीक है, एंड मतलब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की है जो हम फाइनल प्रोडक्ट में यूज करते हैं. तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की ये एल एम 555 नहीं है. ठीक है, इट वर्क्स ऑन 4.5 टू 16 वोल्ट ओनली. हम जो यूज करते हैं दैट इज LM555 आई थिंक, ऐसा कुछ है. मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि वो एक लाइन ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, वोल्टेज. ठीक है, सो हाउ जनरली यू विल यूज द डेटा शीट. तो ये दिखा रहा हूँ. तो मैंने ट्रिपल फाइव आईसी ढूंढी और यहाँ पे मैंने 1.5 वोल्ट पे जाके फिल्टर कर लिया, नॉट रिसेट अप्लाई, सॉरी. सो रिसेट एवरीथिंग हो गया था, मैं बैक ले लेता हूँ. ये 1.5 वोल्ट अप्लाई फिल्टर्स एंड आई फाउंड आउट कि ये आईसी है जो 1.5 वोल्ट पे भी काम करेगी. ठीक है, एंड इट वॉज LMC 555. हाँ, तो सीधे उसकी डेटा शीट ओपन करके दिखाता हूँ कि इस डेटा शीट में फिर तो ऐसे फिल्टर आउट करके फिर डेटा शीट में अब जाके मैंने डिटेल में चीज़ें देखी कि आईसी को कितना वोल्टेज लगेगा. ठीक है, विच वॉज द मोस्ट क्रिटिकल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट.
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल इनपुट वोल्टेज। अच्छा फीचर में लिख दिया मैंने कहाँ पर, यहाँ पे। ठीक है, 1.5 वोल्ट सप्लाई ऑपरेटिंग वोल्टेज इंश्योर्ड, मतलब 100% 1.5 वोल्ट पे ये काम करता है। ठीक है, और 5 वोल्ट। अब द सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए था वो था कि करंट कम कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है कि लेस देन 1 मिलीवॉट टिपिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन एट 5 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट देते हो तब इतना होता है, तुम जब और कम वोल्टेज दोगे तो और कम होगा। ठीक है, सो ये दो चीजों ने, फिर इसके बाद मैंने पावर कैलकुलेशन करके, या फिर मतलब या पावर कैलकुलेशन के बजाय एक्चुअली मैंने सर्किट बना लिया ये आईसी से, और एक्चुअल करंट मेजर करके कैलकुलेट कर लिया कि मेरी बैटरी का एमएएच रेटिंग इतना है और ये टोटल सर्किट इतना कंज्यूम कर रहा है, तो कितने दिन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। एंड करेंटली जो प्रोडक्ट है वो आराम से 40 डेज तक कंटिन्यूसली ब्लिंक करता है जब रूफ मूव हो गई। ठीक है, तो ऐसे प्लेसेस के लिए जनरली तुम यूज करोगे। तो हो सकता है आज हम लोग जानबूझ के डेटा शीट को डिटेल में देख लें या फिर किसी दिन देख लें, बट इतने डिटेल में तुम 2 बार देखोगे। फर्स्ट टाइम तुम्हें आईसी के बारे में कुछ नहीं पता, किसी ने बता दिया, गूगल करके पता चला और तब तुम देखोगे। एंड सेकंड टाइम कि तुम्हें उस आईसी के बारे में सब कुछ पता है, बट कोई एक पैरामीटर तुम्हें इंपॉर्टेंट है किसी प्रोडक्ट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, और तुम तब जाके तुम वो देखोगे कि ठीक है ये पर्टिकुलर आईसी कितना इनपुट ऑफसेट इनपुट बायस करंट, मतलब फॉर एग्जांपल सप्लाई करंट, तो ये कितना करंट लेती है। मे बी तुम्हारे केस में बैटरी के लिए मैनेज करे हो तब वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई एक पैरामीटर के लिए मे बी कभी तुम आके देख लोगे, हो सकता है कि पूरे पैरामीटर के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पैरामीटर के बजाय ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ग्राफ, मतलब सॉरी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर टाइप के आईसीज के लिए यू विल कम हियर फॉर ग्राफ्स, कि ठीक है किस टाइप का ग्राफ पैटर्न है। ग्राफ पैटर्न बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज फॉलोअर का सर्किट बनाया हुआ है, तो वोल्टेज फॉलोअर के सर्किट में आइडियली आउटपुट कैसा आएगा, मैं जो इनपुट दूंगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कब हो जाएगी इस पर्टिकुलर आईसी के लिए। और वन थिंग विल बी एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल इवन इन दिस आईसी लास्ट में कहीं पे एप्लीकेशन लिखे होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन नॉन इन्वर्टिंग डीसी गेन का डिजाइन ऐसा रहेगा। ठीक है, यूजिंग दिस पर्टिकुलर आईसी, कर्व्स वगैरह ऐसे रहेंगे। सिंगल सप्लाई एप्लीकेशन फॉर डीसी समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, पावर एम्पलीफायर बनाना है तो ऐसा सर्किट बनाना पड़ेगा। लैम्प ड्राइवर बनाना है तो ऐसा बना सकते हो। आरसी एक्टिव बैंड पास फिल्टर बनाना है तो ऐसा बना सकते हो। ठीक है, एलजी ड्राइवर ऐसा बना सकते हो। बेसिकली ऐसे एप्लीकेशन दिए रहेंगे। एंड बाय लुकिंग दिस डेटा शीट ओनली एम्पलीफायर के तुम्हें इतने डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन यही बैठे बैठे मिल गए। ठीक है, एंड देन लास्ट में एक और चीज रहेगी, पीसीबी डिजाइन करते रहे हम लोगों ने स्पेसिफाई किया है कि लेआउट का क्या पैटर्न होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए। कुछ कुछ केस में बहुत क्रिटिकल है, LM35 के लिए उतना क्रिटिकल नहीं है, तो जनरली डिजाइन करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, सो डेटा सीट विल बी समथिंग जो आईसी के लिए तुम ओपन करोगे बेस्ड ऑन द कि तुम कितनी बार ओपन कर चुके हो, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ठीक है, तब खाली क्रिटिकल क्रिटिकल के लिए। बट आज के दिन हम LM35 ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेटा सीट एक बार देखना चाहते हैं, नॉट एंड टू एंड बट फॉर्मेट के किस तरीके से फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, एंड व्हाट आर द क्रिटिकल पैरामीटर्स जो सीधे सीधे ओवरलुक करके भी देख लेना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब मैंने गूगल किया तो एक चीज मैंने देख ली कि ठीक है ये कौन सी कंपनी की है। अगर मैं किसी और कंपनी का, मैंने लेट्स से एनआई नेशनल इंस्ट्रूमेंट होता है, नेशनल सेमीकंडक्टर्स या ऑन सेमीकंडक्टर्स का अगर मैं आईसी यूज कर रहा हूँ, तो फालतू में इसकी डेटा शीट क्यों देखना है, इसकी देख लो। समझ में आया। किसी चाइनीज कंपनी की देख यूज कर रहा हूँ तो वो चाइनीज कंपनी की डेटा शीट ओपन कर लेता है। ठीक है, अभी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की यूज कर रहा है तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की ओपन कर ली, तो ये मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। द नेक्स्ट थिंग कि ये डेटा शीट कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक डेटा शीट, बहुत बार एक डेटा शीट सिर्फ एक प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा, बट बहुत बार एक डेटा शीट में मोर देन वन प्रोडक्ट्स की बातें होंगी। फॉर एग्जाम्पल तुमने सबने फोन खरीदा है लाइफ में, है ना, तो उसके साथ उसका यूजर मैनुअल आता है, हाँ या ना। Yes, sir. कभी खोल के देखा है? No, sir. ठीक है, अब दिस थिंग वी ऑल नो कि लेट्स से तुमने खरीदा Redmi Note 4, तो Redmi Note 4 के एक ही वेरिएंट नहीं आते, 2-3 वेरिएंट आते हैं। फॉर एग्जांपल एक होगा 128 GB मेमोरी, 256 GB मेमोरी, 64 GB मेमोरी। तो ये 3 वेरिएंट हो गए बेस्ड ऑन द रैम, सॉरी रोम। फिर रैम के बेसिस में भी आएगा कि 2 GB, 4 GB, 6 GB, मान लो ऐसे 3 वेरिएंट रैम के आ गए।
अगर तुम इनके ही इटरेशंस करोगे तो यू विल बी हैविंग मेनी कॉम्बिनेशंस, ठीक है। फिर एक कॉम्बिनेशन आता है कि कलर गोल्डन, रेड, ब्लैक, येलो, ऐसे कलर के कॉम्बिनेशन आते हैं। तो ऐसे सेट ऑफ कॉम्बिनेशन अगर तुम देखोगे तो रेडमी नोट 4 के डिफरेंट डिफरेंट यूनिक 15 to 16 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर दैट सेम आइटम। तो सबकी डेटा शीट अलग अलग बनाएंगे क्या? No, sir. सो व्हाट दे विल डू? We'll just have the same data sheet for all of them. At most, if there are any differences, like small differences, they can mention in the same data sheet. एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट एवरीवन डू, ठीक है। उस वाले यूजर मैनुअल मतलब उनकी वो डेटा शीट में भी और इस वाले डेटा शीट में भी। सो व्हाट दे डू और व्हाट यू विल डू अगर इन फ्यूचर तुम डेटा शीट बनाओगे, सो अगर कॉमन फैमिली है, ठीक है, तो रेडमी नोट 4 के लिए तुम एक ही डेटा शीट बनाओगे और उसके जितने भी वेरिएंट्स हैं आसपास जैसे, तो बेसिकली यू विल क्रिएट अ डेटा शीट ऑफ अ फैमिली एंड उस फैमिली के डेटा शीट के जितने वेरिएंट्स हैं उसमें इंक्लूड कर दोगे। मैक्सिमम फीचर तो सेम है, तो वहां पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करोगे कि ये किसके लिए बात कर रहा हो। जहां पे अलग होगा, फॉर एग्जाम्पल डेटा शीट में कहीं पे यूजर मैनुअल पे कहीं पे कलर लिखना हुआ, तो कलर के केस में तुम लिखोगे कि रेड वाले के लिए रेड कलर रहेगा, ब्लैक वाले के लिए ब्लैक कलर रहेगा, ठीक है, ग्रीन वाले के लिए ग्रीन कलर रहेगा। समझ में आया? सिमिलरली जहाँ पे लिखा रहेगा रैम, तो वहां पे तुम लिख दोगे कि ठीक है 1 GB वेरिएंट में रैम 1 GB रहता है, 2 GB वेरिएंट में रैम 2 GB रहता है, 4 GB वेरिएंट में रैम 4 GB रहता है। तो ऐसे कहीं कहीं पे तुम डिस्टिंग कर दोगे। बट जहाँ पे आएगा कि ठीक है वाईफाई है कि नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ लिखा रहेगा वाईफाई अवेलेबल है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑप्शन है, 5 गीगाहर्ट्ज का ऑप्शन है। वहाँ पे तुम नहीं लिखोगे किस वाले में, तो जहाँ पे नहीं लिखा है इसका मतलब सारे वेरिएंट्स में दिस इज एप्लीकेबल। सो द सेम थिंग हैपेंस हियर। तो सब जो मैंने ऊपर चेक किया, मैंने देखा कि ठीक है इसकी फैमिली कौन कौन सी फैमिलीज को ये सपोर्ट कर रहा है और मेरा वाला उसमें है कि नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की इस डेटा शीट में LMC555 नहीं है, ठीक है, LM वाले हैं, LMC नहीं है। अगर मुझे LMC चाहिए तो उसके लिए मुझे दूसरी डेटा शीट, ये देख के मुझे समझ में आ गया कि ये डेटा शीट पढ़ के कोई फायदा नहीं है, मेरे प्रोडक्ट में जो यूज हो रहा है वो LMC555 है और मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ इस प्रोडक्ट फैमिली में ये डेटा शीट उन्होंने सिर्फ इस एक आईसी के लिए बनाई है, मतलब 555 फैमिली में आता है बट दिस इज वेरी यूनिक। तो इस यूनिक फैमिली में कोई और है ही नहीं, ऐसा उन्होंने एक ही आईसी बनाया जो 1.5 वोल्ट पे काम करेगा और उसका एक ही नाम है LMC555 और वो सिर्फ इंडिविजुअल डेटा शीट में रिप्रेजेंट करके उसके बारे में बता दिया है, ठीक है। सो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट 555 टाइमर विथ लो पावर हाई एक्यूरेसी एंड मैक्स ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये उन्होंने एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया था, तो इसकी डेटा शीट यूनिक कर दी। हो सकता है कि कुछ दिन बाद तो इसी कैटेगरी में उन्होंने एक और प्रोडक्ट बना दिया जो 3 मेगाहर्ट्ज के बजाय 4 मेगाहर्ट्ज भी सपोर्ट करता है, तो सिर्फ उतना ही चेंज है। तो उसके लिए कोई नई डेटा शीट नहीं बनाएंगे, इसी डेटा शीट में अपेंड कर देंगे, नया वर्जन लॉन्च कर देंगे और बोलेंगे ये डेटा शीट आज से LMC555 और LMC555-1 के लिए, ठीक है। तो दिस थिंग ये हमें समझ में आया। देन नीचे दो तीन फॉर्मेट, मतलब दो तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल इस आईसी के बारे में अगर मुझे क्विकली देखना है तो ये अगर ये बहुत ही सिंपल आईसी है, ठीक है, 555 टाइमर आईसी इज अ वेरी सिंपल आईसी और ये 38 पेजेस की है, दिख रहा है ऊपर 38। तो 38 के 38 पेजेस अगर तुम पढ़ने बैठ जाओगे तो प्रोजेक्ट कभी नहीं बनेगा, ठीक है, तुम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। क्योंकि पहली चीज तो ये बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी है, इट इज एक्सपेक्टेड कि डेटा शीट जो भी खोलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा होगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और अगर नहीं आती है तो हर वर्ड गूगल करके देखना पड़ेगा, जिंदगी बीत जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ट्रांसड्यूसर, यहाँ पे लिखा है DSB GA, चिप साइज, ठीक है, ऑफसेट वोल्टेज, यूनिटी गेन, क्रॉस फ्रीक्वेंसी, अपने आप में टेक्निकल वर्ड है, पढ़ा होगा, ठीक है, इंटरनली कंपनसेटेड, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जार्गन्स यूज हो रहे हैं। अगर तुम्हें पता है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन रन टाइम, अदरवाइज गूगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए तुम ऐसे बुक की तरह रीड नहीं करोगे, नॉवल की तरह रीड नहीं करोगे, यू विल स्किम इट एंड फिगर आउट कि तुम्हारे काम की चीजें कहाँ हैं, एंड दैट इज व्हाट क्या बोलेंगे आर्ट ऑफ रीडिंग अ डेटा शीट इज, ठीक है। तो मेरे प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने LMC555 के सारे पेजेस नहीं रीड किए थे, मैंने स्किम किया, सारे क्रिटिकल पैरामीटर्स जो मुझसे रिलेटेड है वो फिगर आउट करके पढ़ लिया। बट एक चीज जो हमेशा की जा सकती है, इफ यू हैव टाइम एंड बैंडविड्थ, रीड एवरीथिंग अबाउट द फीचर्स, ठीक है। दिस इज लाइक समरी ऑफ योर डेटा शीट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी है। जैसे LMC555 में वोल्टेज रेटिंग उन्होंने फीचर्स में डाल दिया था, नीचे कहीं लिखा ही नहीं,
कि 1.5 वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ फीचर्स में क्या क्या लिखा हुआ है, अवेलेबल इन 8 बम, मतलब ये पर्टिकुलर पैकेज में भी अवेलेबल है। इन्होंने दिस इज समथिंग यूनिक जिसको उन्होंने फीचर में सबसे ऊपर डाल दिया कि बाकी कॉम्पिटिटर ने इस पैकेज में नहीं बनाया होगा, इन लोगों ने इस पैकेज में बना लिया है। ठीक है, फिर इंटरनली फ्रीक्वेंसी कंपनसेटेड फॉर यूनिटी गेन, मतलब तुम यूनिटी गेन, मतलब इस टाइप की स्टेबिलिटी ज्यादा है अंदर। उन्होंने जो भी लॉजिक यूज किया था वो फ्रीक्वेंसी कंपनसेटेड है, मतलब तुम एक जो भी डिफाइंड फ्रीक्वेंसी है उसमें से किसी भी फ्रीक्वेंसी के बीच में यूज करो, आउटपुट हमेशा स्टेबल आएगा। ठीक है, ऐसे कर करके बहुत सारे फीचर्स लिखे हुए हैं कि वाइड बैंडविड्थ 1 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी अचीव कर सकते हैं। LMC Triple 5 3 मेगाहर्ट्ज तक की अचीव कर पा रहा था। ठीक है, सिंगल सप्लाई, मतलब अगर तुम पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दोगे 0 वोल्ट से 3 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट तक चलेगा, मतलब ये वाली आईसी 3 वोल्ट पे काम कर लेगी। 555 नहीं सॉरी, ये LM358 है, मैं कब से 555 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये LM358 3 वोल्ट पे काम करेगा। ओके, बट इन दिस पर्टिकुलर आईसी देयर इज एन ऑप्शन कि तुम 0 वोल्ट 3 वोल्ट दो या फिर -1.5 वोल्ट से लेके +1.5 वोल्ट दे दो। ठीक है, या फिर -16 वोल्ट से लेके +16 वोल्ट दे दो। तो देयर इज दिस रेंज। यहाँ पे भी 32 वोल्ट ही है, जस्ट हमने ग्राउंड को मूव करके -16 कर दिया तो +16 हो गया। ग्राउंड को 0 कर दिया तो 32 वोल्ट इज द मैक्स वोल्टेज कैन मैनेज। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 वोल्ट, मतलब और सिंगल सप्लाई बोलते हैं मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब ओनली पॉजिटिव साइड। डुअल सप्लाई बोलते हैं मतलब नेगेटिव साइड्स विल बी देयर। कोई बता सकता है इसका इसका रेलेवेंस की, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? Maybe that it also works on AC. एसी, ठीक है। सो यू आर Yeah, I ट्राइंग mean, टू एम्पलीफाई वोल्टेज ना? हाँ बोलो। yeah, I was saying if the voltage goes to the negative side, it should still work. एग्जैक्टली, तो फॉर एग्जाम्पल उस दिन मैंने एग्जाम्पल दिया था कि माइक का वोल्टेज नेगेटिव साइड में जाएगा, तो तुम एम्पलीफाई करोगे, और अगर डीसी वोल्टेज देके 0 से 3 वोल्ट को देके एम्पलीफाई करोगे तो खाली 3 वोल्ट एम्पलीफाई होगा, -3 वाला पार्ट नहीं होगा। So for that kind of application, you will provide the supply -3 volts से +3 volt, and this small voltage will be amplified to +3 volt and -3 volt side। ठीक है, सोर्स पे डिपेंड करता है। उस दिन मैं एम्पलीफायर की बात कर रहा था और मैं बता रहा था कि एम्पलीफायर के लिए यू हैव टू प्रोवाइड द पावर सप्लाई। तो दिस आईसी इज डिजाइन जहाँ पे नेगेटिव सप्लाई लेके ये मैनेज कर पाएगा। कुछ आईसीज होंगी जो नहीं कर पाएंगी, बट दिस कैन। ठीक है, तो ऐसे फीचर वाले पार्ट में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखे होते हैं। ठीक है, so that is like first। फिर सेकेंड थिंग इज लाइक एप्लीकेशंस लिखा होता है, विच इज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें पता रहता है, बट नहीं पता तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये इन एप्लीकेशंस के हिसाब से डिजाइंड है। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस में तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग, तो सेकंड थिंग इज लाइक अब ये सीक्वेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फीचर्स आर ऑलवेज जनरली द फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। बहुत बार आईसी बहुत ही सिंपल है, तो डिस्क्रिप्शन विल बी वन लाइन कि ये आईसी मोटर का ड्राइवर है, मोटर कंट्रोल करती है, दैट्स इट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन है कि आईसी क्या क्या कर सकती है, कैसे कैसे कर सकती है। देन देयर विल बी थिंग्स अबाउट पैकेज, एंड दिस विल बी लाइक अगर तुम प्रैक्टिकली डिजाइन करने की सोच रहे हो तो दिस विल बी वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी आईसी किस पैकेज में अवेलेबल है। एंड द थिंग कि इस आईसी में इतने सारे टाइप के नाम से ऊपर, मोस्ट ऑफ देम एग्जैक्टली सेम है, पैकेज डिफरेंस होंगे। ठीक है, जैसे LM158 टीओ कैन पैकेज में अवेलेबल है, सीडिक में अवेलेबल है। 258 खाली टीओ कैन में अवेलेबल है। ठीक है, अगर तुम्हें एसओआईसी चाहिए तो ये दो में नहीं कर सकते, इसी से करना पड़ेगा या इससे करना पड़ेगा। सो दीज आर लाइक पैकेज के डिफरेंसेस के हिसाब से साइज अलग है एंड नाम अलग अलग है। ठीक है, और हो सकता है फॉर एग्जाम्पल एसओआईसी में ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल, तो इन दोनों में और भी कुछ डिफरेंसेस होगा। टीओ कैन में ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, तो इन दोनों में और भी कुछ डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, सो पैकेज इज द नेक्स्ट थिंग जो मैं देखूंगा। उसके बाद उनका कुछ पिन डायग्राम या फिर ब्लॉक डायग्राम टाइप का दिया रहता है। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट की डेटा सेट में क्या क्या होगा, रिवीजन हिस्ट्री की कब कब लॉन्च किया था, क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो रिवीजन हिस्ट्री आइडियली जनरली फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यू माइट बी लुकिंग एट द लेटेस्ट वन जब गूगल करते हो तब। टेबल ऑफ कंटेंट देख के एक जनरल आइडिया आ जाता है कि नीचे क्या क्या दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेआउट के बारे में चीजें दी है कि नहीं दी है इस डेटा शीट में। सो देर आर वन मोर टाइप ऑफ डेटा शीट। जनरली जब डेटा शीट बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है तो वो एक और डेटा शीट का वर्जन लॉन्च करते हैं और उसे बोलते हैं समरी वाली डेटा शीट। ठीक है, एक और वर्जन लॉन्च करते हैं और उसे बोलते हैं एप्लीकेशन वाली डेटा शीट। तो एप्लीकेशन वाली डेटा शीट में सारी बातें एप्लीकेशन के अराउंड होगी।
समरी वाले डेटा शीट में बहुत ही ब्रीफ में फर्स्ट पेज टाइप का दिया रहेगा, एंड डिटेल डेटा शीट में ये तीनों चीजें इंक्लूडेड होगी। एंड दिस वन इज लाइक डिटेल जैसे, जिसमें लेआउट के बारे में है, एप्लीकेशन के बारे में है, ठीक है, पैकेज वगैरह सब कुछ के बारे में है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज लाइक पिन कॉन्फ़िगरेशन, कि कौन सी पिन कहाँ पर जाती है। और बहुत बार डेटा शीट की नीड तुम्हें इसलिए पड़ेगी, आजकल गूगल पे मिल जाता है, तो तुम खाली गूगल कर लोगे कि LM358 पिन आउट, पिन आउट इज द कीवर्ड, ठीक है, जो तुम्हें गूगल करना है और तुम्हें उसका पिन मिल जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ पे डाउट आ रहा है तो गो टू डेटा शीट एंड फिगर आउट की एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। तो पीडिफ हम जो यूज करने वाले हैं उसका पैकेज ऐसा है, पिन नंबर 1 इज आउटपुट, पिन नंबर 2 इज इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 3 इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ग्राउंड V प्लस आउटपुट। तो इसमें दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, LM358 में दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, 741 में एक ही होता है, ठीक है। इसके इस वाले पैकेज का ऐसा पिन है, इस वाले का ऐसा पिन है, एक और पैकेज जो नीचे दिया हुआ है, तो लेट मी जूम आउट फर्स्ट, उसके पिन ऐसे, ठीक है। बाई पिन आई मीन कि पिन नंबर, पिन 1 2 3 4 के हिसाब से कौन सी पिन क्या है, ठीक है। एंड देन एक टेबल मिलेगी जहां पे पिन का डिटेल नाम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। फिर आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। मैक्सिमम कितना वोल्टेज दे सकते हो, मैक्सिमम कितना करंट, मैक्सिमम कितना पावर, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर। तो तुम्हारे केस में आइडियली जब तक तुम बहुत ही प्रो नहीं हो जाते तब तक टेम्परेचर इज लाइक नॉट अ क्रिटिकल थिंग, क्योंकि तुम अपने घर में यूज कर रहे हो। किसी एक सिस्टम के लिए डिजाइन करोगे जो हीट होने वाला है, तब तुम सोचोगे टेम्परेचर का। अदरवाइज वोल्टेज एंड करंट आर टू थिंग जो जनरली तुम देखते हो, ठीक है। तो दिस कैन मतलब दिया हुआ है कि ये देखो, ये वाले सारे के सारे मैक्सिमम 32 वोल्ट मैनेज कर सकते हैं, बट ये एक सिंगल वाला खाली 26 मैनेज कर सकता है। तो मतलब अगर तुमने गलती से 26 वोल्टेज से ज्यादा दे दिया तो ये आईसी में कुछ ना कुछ खराब हो चुका होगा, आइडियली दोबारा यूज मत करो। 32 वोल्ट से ज्यादा दे दिया तो ये सारी में से कोई भी आईसी यूज करो उसमें कुछ ना कुछ खराब हो चुका रहेगा। सेम इज लाइक सिंगल सप्लाई के लिए और डिफरेंशियल के लिए दो अलग अलग लिखा है। इनपुट वोल्टेज के लिए बोला है कि -0.3 के नीचे मत जाना, नहीं तो फिर से कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। सेम 32 इनपुट वोल्टेज का मतलब है एक सप्लाई वोल्टेज, मतलब जब तुम पावर सप्लाई देते हो। इनपुट विल बी वो सिग्नल का इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो वो भी तुम 32 वोल्ट के ऊपर मत जाना। ऐसे कुछ कुछ मैक्सिमम रेटिंग दी रहेगी। आफ्टर दैट देयर विल बी वन रिकमेंडेड, कि आइडियली तुम ये यूज कर लेना। फिर टेम्परेचर के लिए थर्मल की बात हर आईसी में जनरली अलग से होगी या फिर रिकमेंडेड में मिक्स होगी। एंड देन लास्ट इज लाइक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो आइडियली तुम एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखोगे कि हम लिमिट क्या है, ठीक है। एक बार लिमिट पता चल गई देन यू विल कम टू इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पे रिकमेंडेड वाली रेंज कवर होती है, ठीक है। एंड व्हाट इज द मिनिमम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम जनरल यूज का, टेम्परेचर वोल्टेज करंट सब कुछ, ठीक है। एक बार ये सारी टेबल देख ली तो यू विल गेट टू नो कि तुम्हारा वोल्टेज वगैरह क्या होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलग अलग टेबल होंगे बेस्ड ऑन अलग अलग कैटेगरीज क्या है। तो लेट्स से हम लोग LM358 यूज करने वाले हैं, तो ये हमारे लिए नहीं है, ये भी हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो हमारी टेबल कौन सी है, ये वाली हमारी टेबल है। हमारी टेबल के हिसाब से टिपिकली 2 वोल्ट से, और उसमें भी LM358 का अलग है, LM2904 का अलग है, ठीक है। LM358 को 2 से 7 वोल्ट दे सकते हैं। इनपुट बायसिंग करंट मतलब 250 मिली नैनो एम्पियर तक चल जाएगा, ठीक है। ऐसे जो भी लगने वाली चीजें हैं यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो दिस इज माई टेबल, इसके ऊपर की सारी टेबल यूजलेस थी फॉर मी, समझ में आया। और इसके बाद अब नीड पे है कि अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट है क्या, कि तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक देखने की जरूरत पड़ने वाली है, तो तुम आओगे और ग्राफ्स देख के डिसाइड करोगे कि कितना टाइम लैग आता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि तुमने यहाँ ऑन किया बट टाइम को एक्चुअली ऑन होने में एक ब्लॉक हो गया, एंड ईच ब्लॉक यहाँ पे कहीं पे लिखा रहेगा, मतलब दिस लाइक ग्राफ रीडिंग हम सबको पता है। तो हम सबको पता है, मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि बचपन से कर रहे हैं। तो ईच ब्लॉक इज लाइक 10 माइक्रोसेकंड। तो जब तुम ऑन बोलोगे उसके 10 माइक्रोसेकंड के बाद एक्चुअली ऑन फुल वोल्टेज मिलेगा, तब तक उसको कम वोल्टेज मिल रहा था। ऑफ बोलोगे उसके 10 माइक्रोसेकंड के बाद ट्रूली वो जीरो होगा। तो ये ग्राफ से मुझे ये समझ में आ गया, समझ में आया। ऐसे यू विल इंटरप्रेट ग्राफ्स बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, योर डेट्स। एंड देन लास्ट पार्ट विल बी कि एप्लीकेशंस के बारे में और भी चीजें रहेगी और डिटेल वर्किंग के बारे में और भी चीजें रहेगी। यहाँ पर तुम नीड बेस्ड चीजों के लिए आओगे, एंड देन लास्ट नीड बेस्ड मतलब क्या एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसके बारे में अगर कोई चीज है तो यहाँ के पढ़ लेना, ठीक है। देन द लास्ट पार्ट इज मैकेनिकल, कि उसका पिन का शेप साइज वगैरह क्या होगा। तो यहाँ कहीं पे मैकेनिकल है ये, ठीक है। पैकेजिंग कैसी होती है अगर तुम बल्क में खरीद रहे हो तो
खरीदते टाइम कैसा मिलेगा और उस आईसी के पिन के स्पेसिंग वगैरह क्या रहेंगे, ठीक है। ऐसी दिखेगी, पिन नंबर 1 ये रहेगा, 4 ये रहेगा, 8 ये रहेगा, फिजिकली ऐसा दिखेगा। दिस इज लाइक फिजिकल, दिस मैकेनिकल इज फिजिकली ऐसा दिखेगा, ऐसा पिन होगा। इसके पैकेज के जितने टाइप्स होंगे उन सारे पैकेज के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होने वाला है। जैसे कि दिस इज लाइक अ वेरी स्मॉल पैकेज, डीएस बीजीए, बीजीए इज लाइक बॉल ग्रिड एले, डीएस का मुझे नहीं पता, ठीक है। ये बहुत ही छोटा साइज होने वाला है और उसके पिन का स्पेसिंग क्या होगा, हाइट क्या होगा, सब दिया है, ठीक है। तो दीज आर लाइक स्टफ्स जो हमारी डेटा शीट में होने वाली है। ऐसे ही मैं एनी ट्रिपल फाइव का सर्च कर लूंगा जो हम यूज करने वाले हैं, एन ई ट्रिपल फाइव, यू विल फाइंड कि ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। तो मैं अभी कोई भी एक रैंडम ओपन कर लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन है, इन लोगों ने फीचर्स नहीं लिखा, फीचर्स इसके बाद लिखा, ठीक है। फीचर्स यहाँ पे है, माइक्रो सेकेंड्स टू आवर्स, स्टेबल, मोनोस्टेबल। फिर पिन असाइनमेंट यहाँ पे डाल दिया, मतलब छोटा ओपैम्प इज लाइक अ वेरी ह्यूज, इसका 38 पेज का था, इसका 14 पेज का है। एप्लीकेशन सिंपल साइज के कम है, यूजर्स कम टाइप के, इसकी डेटा शीट छोटी है। यहाँ पे पिन डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ पे फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम हो गया, उसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और टॉप साइड में हमने जाके देखा कि एक ही आईसी के बारे में है, तो कंफ्यूजन है ही नहीं कि ये टेबल मेरा है कि नहीं है, सारी टेबल तुम्हारी है। ये ग्राफ्स हो गए, एंड देन लास्ट में डिस्क्रिप्शन होगा कि कैसे काम करता है, उसके एप्लीकेशन वाइज अलग अलग डिस्क्रिप्शन, एंड देन मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मार्किंग इनको भी कुछ कुछ होती है कि मार्किंग का क्या होगा, पैकेजिंग का, एंड देन मैकेनिकल, ठीक है। तो दिस इज द कॉमन पैटर्न ऑफ ईच डेटा सेट एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ईच ऑफ देम। एंड अगर हम लोग ये बोलेंगे कि ठीक है हमें डेटा शीट के बारे में कुछ सीखना है, तो सीखना क्या है, रीडिंग सीखना है, ठीक है। डेटा शीट रीडिंग कैसे आता है, 3-4 बार करके आता है, और जब एक्चुअली में प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं तब। अगर यूज नहीं कर रहे हो और बेवजह डेटा शीट रीड कर रहे हो तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। यूज करोगे तब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मेरा एप्लीकेशन क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, वोल्टेज क्या है, और तब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये समझा, ये क्लिक हुआ डेटा शीट वाला पार्ट, Yes, sir. ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम LM358 यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा ही, बहुत कुछ है। अच्छा, बहुत कुछ के पहले एक बार मुझे दिखाना है ये कि op-amp application, और मोस्टली उसका चार्ट टाइप का कोई सर्किट मिल जाएगा जहाँ पे नाम है ये। ओपैम्प से तुम इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन के सर्किट्स बना सकते हो, फिजिकल सर्किट, ठीक है। लीनियर एप्लीकेशन, नॉन लीनियर एप्लीकेशन, वेव शेपिंग, ठीक है। लीनियर में कहीं पर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर आता है, इंटीग्रेटर, डिफरेंशियल, ये सब कुछ आता है, एडर, सब्ट्रैक्टर, ठीक है। नॉन लीनियर में कंपैरेटर आता है, जीरो क्रॉसिंग आता है, क्लिपर एंड क्लैंपर्स आता है। क्लिपर एंड क्लैंपर याद है, डायोड के टाइम पे देखा था, वो तुम और अच्छे तरीके से और क्या बोलेंगे, पावर एफिशिएंट मेथड से ओपैम्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सैंपल एंड होल्ड सर्किट इज समथिंग जो यूज करते हैं ऑसिलोस्कोप्स वगैरह जैसे भी केसेस में, ठीक है। इसमें ट्रिगर यूज करते हैं, बहुत सारे केसेस में यूज करते हैं, ऑसिलोस्कोप में भी यूज करते हैं जहाँ तक मुझे याद है, ट्रिगर ट्रिगर जनरेट करने के लिए, ठीक है। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर इज यूज टू फिगर आउट कि एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या है, कब क्रॉसिंग हुई, कब वो 0 वोल्ट आया, उस टाइम पे कुछ करना है, ऐसे केसेस में जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर यूज करते हैं। कंपेरेटर इज समथिंग जो हम पढ़ने वाले हैं। वेव शेपिंग, साइन वेव जनरेटर, ट्राइंगल वेव जनरेटर, ये सब के लिए यूज करते हैं। पीडब्ल्यूएम करके हम फ्यूचर में कभी पढ़ेंगे, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जनरली पीडब्ल्यूएम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक चार्ट था, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट बना सकते हैं, एंड दिस वोंट बी 100%, ठीक है। उसके अलावा आप आउट ऑफ इट बहुत सारे होंगे, एंड op-amp सर्किट सर्च करते हैं, यू विल फाइंड कि इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट मिल जाएंगे। कोई चार्ट जैसे कि यहाँ पे ही है, ठीक है। दिस इज लाइक 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग, समिंग एंड डिफरेंस, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स, लाइक मुझे ऐसा याद है कि एक में 8 या 10 अलग अलग टाइप के सर्किट थे, ठीक है। तो 4 तुम्हें वहाँ दिखे, बेसिक सर्किट, इन्वर्टिंग, हाँ पिन रेस्ट में मिलेगा, ठीक है। दिस विल बी हियर इटसेल्फ। तो मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल है, हाँ ये इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप के चार्ट मिल जाएंगे जिसमें तो दिस लाइक का समरी चार्ट, बट अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से तुम्हें अलग अलग, हाँ जस्ट मिनट, ठीक कहाँ गया, ऑलमोस्ट मिल गया था मुझे, ठीक है। ये क्लिक किया और ये रहा,
ठीक है, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, समिंग, डिफरेंस, वोल्टेज फ्लावर। इसके अलावा इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर भी सर्किट्स हैं ये, जैसे यहाँ पे बहुत सारे और दिए हुए हैं। वोल्टेज कंपैरेटर, दिस इज समथिंग जो हम पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हम ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, इंटीग्रेटर का प्रैक्टिकल करके हम टाइम पास नहीं करेंगे। यू हैव द आईसीज, यू कैन डू इट एनी टाइम, बट हम सिलेबस वाइज वोल्टेज कंपैरेटर बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, एम्पलीफायर मोस्टली नहीं यूज करने वाले, हम ट्रांजिस्टर से करने वाले हैं। ओके, बट इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर मतलब साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, वैसा इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर रियल लाइफ वेव के साथ करेगा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, दो वोल्टेज के बीच का डिफरेंस। समिंग एम्पलीफायर, वोल्टेज फॉलोवर। ठीक है, जैसा जैसा वोल्टेज आएगा वैसा वैसा तुम्हें दिखेगा। इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये सीधे को सीधा एम्पलीफाई करता है, इन्वर्टिंग उसको सीधे को उल्टा एम्पलीफाई करता है। ठीक है, वोल्टेज कंपेरेटर, दो वोल्टेज के बीच में कंपेयर करता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। वी आर गोइंग टू सी कंपेरेटर पार्ट, बट उससे पहले दिस की ओपैम्प, तो सिंबॉलिकली इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस थ्री टर्मिनल्स। इसके अलावा ऑब्वियसली आईसी है तो पावर लगेगा, तो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्मिनल्स भी लगेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू मेक इट इजी, हम सबको ये पता है ये क्या है, And एंड गेट। एंड गेट। वैसे ही मतलब एंड गेट है, इनपुट में दोनों को वन दिया तो आउटपुट बनाता है, ऐसे कुछ लॉजिक है। ठीक है, सिमिलरली वी हैव दिस ट्राइंगल जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, ये डिजिटल के लिए है, ये एनालॉग वोल्टेजेस को भी मैनेज कर पाता है। ठीक है, तो आज के बाद से ये सिंबल दिखेगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब इसके आगे और पीछे क्या कंपोनेंट करेक्ट है, उसके बेसिस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर अलग अलग टाइप के बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। कभी एम्पलीफायर इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग, कभी कंपैरेटर, कभी समिंग एम्पलीफायर, कभी इंटीग्रेटर या डिफरेंशिएटर। बट द ट्राइंगल पार्ट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, दो इनपुट होते हैं, जो प्लस होता है उसको नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं, इन्वर्ट नहीं करेगा। जो माइनस होता है उसको इन्वर्टिंग बोलते हैं। सिंपल है, लॉजिकल है। इसके अलावा आईसी है तो पावर देना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पे 5 वोल्ट 0 वोल्ट दे सकते हो, 9 वोल्ट 0 वोल्ट दे सकते हो, कितना दे सकते हो ये तुम्हारी डेटा सीट से समझ में आएगा। हमने LM358 की डेटा सीट देखी और हमें ये भी समझ में आया कि हम डिफरेंशियल वोल्टेज भी दे सकते हैं, मतलब डुअल कि -9 +9 भी दे सकते हैं। एंड हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है जो +9 एंड -9 प्रोड्यूस कर सकता है ना? सही है, द ओनली डिफरेंस इज कि yes, sir. इसको ना डीसी वोल्टेज चाहिए, एसी नहीं चाहिए। ठीक है, बट क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में भी कैपेबिलिटी है +9 -9, तो तुम इसको +9 वोल्टेज डीसी एंड -9 वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉसिबल है क्या ये? Yes, sir. ठीक है, सो हम पॉजिटिव साइड में एक दिन करने वाले हैं, नेगेटिव साइड में आज क्योंकि बात हो रही है अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, प्लस, ठीक है, डुअल वोल्टेज, डुअल डीसी वोल्टेज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। बहुत सारे और ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्मर हम यूज कर चुके हैं, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्मर बता रहा हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है। सो क्या किया, दो ब्रिज रेक्टिफायर यूज किए, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। ठीक है, एक पॉजिटिव से ग्राउंड के बीच में कर रहा है, पॉजिटिव एंड ग्राउंड, दूसरा ग्राउंड से नेगेटिव के बीच में कर रहा है। तो दिस इज लाइक पॉजिटिव एंड जीरो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो नेगेटिव टर्म्स में दिखेगा। ठीक है, और दिस इज लाइक इसके आगे जब तुम जीनर डायोड लगाओगे और सब कुछ करोगे तो दैट लॉजिक विल फॉलो। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन है ये कि रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करने के बाद मतलब सॉरी, हाँ रेक्टिफाई किया और तुम्हारे पास +9 वोल्ट एंड 0 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 0 वोल्ट एंड -9 वोल्ट आया, तो मतलब यहाँ पे माइनस वोल्टेज है, यहाँ पे प्लस वोल्टेज है, उसको तुम रेगुलेट कर सकते हो। 9 के बजाय अगर 15 है तो 15 को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर भी आते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, बट दिस इज पॉसिबल टू गेट द ड्यूअल डीसी वोल्टेज, है ना? तो उससे तुम इन वोल्टेज को पावर सप्लाई कर सकते हो, बट इट वोल्टेज पर इस आईसी को पावर सप्लाई कर सकते हो। अब ओपैम्प इन जनरल एम्पलीफिकेशन के लिए डिजाइन है, तो दिस इज द लॉजिक बिटवीन दोज टू पिन, कि उस दो पिन के बीच का जो वोल्टेज होगा प्लस एंड माइनस के बीच का, वो एम्पलीफाई होकर तुम्हें मिलेगा। इसके बीच में मैंने एक छोटा सा वोल्टेज दिया, एम्पलीफाई होके एक बड़ा सा वोल्टेज मिलेगा, ऐसा। ठीक है, उसको फॉर्मूला वाइज हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा के विल बी योर एम्पलीफिकेशन फैक्टर एंड V1 - V2। अब हो सकता है कि V2 0 हो,
ठीक है, क्या एम्पलीफाई करना है, क्या सर्किट है, उस पर डिपेंड करता है। नॉट मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, बट जनरली इसी के बेसिस पे सारे बहुत पीछे एप्लीकेशन डिजाइन होते हैं, क्योंकि जो ओपैम्प डिजाइन है इट इज डिजाइन टू बिकम एम्पलीफायर, राइट। अब उस एम्पलीफायर को तुमने कैसे मोल्ड कर लिया कि इट इज इंटीग्रेटिंग, या फिर वो क्लिप कर रहा है, या फिर वो इन्वर्ट कर रहा है, राइट, या फिर वो कंपेयर कर रहा है। तो द होल बेसिस विल बी कि ट्रिक कैसे कर रहे हो उसके अंदर के लॉजिक को, बट बेसिक फॉर्मूला ये होगा। अब हम LM358 यूज करने वाले हैं, तो LM358 को कंपैरेटर की तरह यूज करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे मेथड है कंपैरेटर की तरह यूज करना चाहते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग अबाउट LM358 जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया कि स्टेप इज लाइक दिस। ठीक है, 8 पिन की आईसी है। फॉर एनी आईसी बहुत सारे पैटर्न हैं, बट जो जनरली DIP पैटर्न की आईसी लोगे उसका नाम है डुअल इन लाइन पैकेज। ठीक है, तो दो ही लाइन में उसके पिंस होते हैं, दैट्स वाई डुअल इन लाइन। आईसी की नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है, ऐसे रोटेट होगी, यहाँ खत्म होती है। तो दिस आईसी इज ऑफ 8 पिन, तो पिन नंबर विल बी ऐसा नॉच होता है या फिर एक डॉट होता है। ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं कि आईसी के लेफ्ट साइड विच इज दिस वाला पिन 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8। सो दीज आर पिन के पैटर्न्स। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक दिस इज पिन नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, 5, 6, 7, 8 चलेगा। हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ड्रॉप किया हुआ था ऐसा। LM358 इज लाइक डुअल ओपैम्प, एक ही आईसी में दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं। एक आईसी और आती है LM324, इट इज क्वाड ओपैम्प, एक ही आईसी में चार ओपैम्प होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई आईसी आती हो जिसमें 8 ओपैम्प होते हैं, बट अभी मुझे नहीं पता। सो दिस सर्किट डायग्राम, मतलब बेसिकली पिन डायग्राम वाज टेलिंग मी कि ये एक ओपैम्प है। अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, जहाँ तक मुझे याद है। दिस वाज ग्राउंड एंड दिस वाज VCC, मतलब यहाँ पर मेरा बैटरी का 9 वोल्ट जाएगा हमारे केस में, क्योंकि हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर बैटरी का ग्राउंड जाएगा। ठीक है, यहाँ ये आउटपुट था, यहाँ से मैं आउटपुट कनेक्ट करूंगा किसी LED को या फिर किसी भी चीज को। ठीक है, रेजिस्टेंस के थ्रू, और यहाँ पर मैं इनपुट्स को कुछ करूंगा सो दैट मेरा लॉजिक काम करे। ऐसा ही एक ट्राइंगल यहाँ भी है। ठीक है, तो डुअल ओपैम्प को, और इस चीज को अब हम डेटा शीट में भी देख लेते हैं। डेटा शीट में देखने के बजाय, मतलब देखेंगे तो मैं ऐसे गूगल करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, सो दिस इज हाउ द आईसी लुक्स लाइक। ये पिन डायग्राम है, स्कीमेटिक वाइज ये डायग्राम है। ये सॉरी, ये 741 का है शायद से, नहीं किसी का ही अपना ही। ठीक है, तो स्कीमेटिक वाइज ये डायग्राम है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है। पिन नंबर 2 इज इन्वर्टिंग वन, पिन नंबर 3 इज नॉन इन्वर्टिंग वन। यहाँ पे 6 इन्वर्टिंग वन है, 5 नॉन इन्वर्टिंग वन है, और 1 इज आउटपुट। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि मेरी आईसी में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो कौन से पिन कहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को काम करने के लिए तुम्हें इस VCC में पावर देना पड़ेगा। अभी अभी हमने पढ़ा मिनिमम 3 वोल्ट, हमारे केस में 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट देंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट दे देंगे। एक बार ये दे दिया, उसके बाद इन ट्राइंगल को यूज करके हम कुछ बना सकते हैं। एंड नाउ वी वांट टू यूज दिस ट्राइंगल एज अ कंपैरेटर। किसी को पता है कंपैरेटर क्या होगा? LM35 को हम कंपैरेटर की तरह यूज करना चाहते हैं। तो किसी को पता है कंपैरेटर क्या होगा? Yes, sir. So And it, yes, comparing sir. क्या होगा? voltage signals. इट विल कंपेयर So द it will, वोल्टेज। सही है, and it will give a digital output like डिजिटल। Yes. ठीक है, तो कंपैरेटर को तो तुम सिंपली बोल सकते हो कि कंपैरेटर इज अ गेट जो एनालॉग वोल्टेज को कंपेयर करता है, और अगर पॉजिटिव वाला बड़ा है तो आउटपुट हाई देता है, नेगेटिव वाला बड़ा है तो आउटपुट लो देता है। ठीक है, हाई इज लाइक अगर तुमने पावर सप्लाई 9 वोल्ट दिया है तो हाई 9 वोल्ट का होगा। पावर सप्लाई का नेगेटिव 0 वोल्ट है तो लो 0 वोल्ट होगा। अगर -9 वोल्ट होता है तो लो -9 वोल्ट होता। ठीक है, तो कंपैरेटर इज अ सर्किट विच विल कंपेयर टू वोल्टेजेस जो भी ओपैम्प के इनपुट में आएंगे। एंड सर्किट इज वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है, सो लेट मी गो टू दिस व्हाइट बोर्ड एंड ड्रॉ द कंपैरेटर का सर्किट। ठीक है, ध्यान से देखना कंपैरेटर का सर्किट कैसा रहता है। बस हो गया, और कुछ नहीं रहता। दिस इज कंपैरेटर। मतलब अगर तुमने ओपैम्प में कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, नथिंग, नो रेजिस्टर, नो कैपेसिटर, आइडियली वो कंपैरेटर का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है? V प्लस V माइनस को कंपेयर करता है। इफ V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, आउटपुट विल बी
high, which is this output thing. V plus is less than V minus, so output will be low, which is again this thing. यहाँ पे या तो 9 वोल्ट आएगा या तो 0 वोल्ट आएगा बेस्ड ऑन की वोल्टेजेस क्या है. एंड नाउ बैक साइड में तुम्हें ये पता है, सो व्हाट यू कैन डू इज लाइक यू कैन कनेक्ट फ्यू थिंग्स टू कंट्रोल इट. ठीक है, कंट्रोल व्हाट, कंट्रोल वोल्टेजेस V प्लस एंड V माइनस. लेट्स से मैंने V माइनस से एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दिया जिसका एक एंड 9 वोल्ट से कनेक्टेड है, दूसरा एंड 0 वोल्ट से कनेक्टेड. मतलब अब तुम पोटेंशियोमीटर घुमा के यहाँ पे 0 से 9 वोल्ट के बीच में कुछ भी सेट कर सकते हो. एंड सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक LDR का मतलब रजिस्टर LDR. ठीक है, तो मैं अब एक सर्किट बना रहा हूँ ऐसे ही बात करते करते. तो यहाँ पर मैंने एक LDR कनेक्ट किया और एक फिक्स रजिस्टर कनेक्ट कर दिया. LDR याद है सबको, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर. ये V out based on light resistance of LDR will change, so obviously V out will change. Now this circuit I can use to differentiate between day and light, day and night. ठीक है, एक फिक्स रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे लेट्स से 10 किलो का. अब अगर ये LDR का रेजिस्टेंस चेंज होता है तो यहाँ का वोल्टेज चेंज होगा. और तुमने पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज लेट्स से ये चेंज होगा, कितना चेंज होगा, अगर फुल डार्क है तो लेट्स से 0 वोल्ट, फुल ब्राइट है तो 9 वोल्ट. तो डार्क से नाइट के बीच में ये वोल्टेज चेंज होने वाला है. और अगर तुमने यहाँ पे 4.5 वोल्ट सेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर इफ यू सेट 4.5 वोल्ट ऑन नेगेटिव पिन, तो जब तक वोल्टेज 4.5 वोल्ट से कम है यहाँ पे 0 वोल्ट आता रहेगा. लेट्स से तब तक दिन है. जैसे ही रात हुई रेजिस्टेंस और चेंज हुआ, कुछ हुआ, वोल्टेज 4.5 से ज्यादा हुआ, 5 वोल्ट हो गया. तो अब V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस 9 वोल्ट आने लगेगा. और अगर मैंने वहाँ पर 9 वोल्ट का 5 वोल्ट की जगह पे LED लगाया, now this circuit is comparing the voltage. A lot of disturbance is coming in your wall. Now अब ऑडिबल है? Yes, sir, now it's coming. Yes, sir. Yes, audible now. Yes, sir. ठीक है. So I was saying कि you can make, अच्छा तो मैंने सर्किट ड्रॉ ही कर दिया था. I will go and Google it. So this is the circuit I was talking about. ठीक है, so अब when you connect no capacitor nothing, no capacitor मतलब basically this pattern, ठीक है, कि खाली वोल्टेज आएगा यहाँ पे. So it becomes very easy for LM35 to compare it and produce the output. ठीक है, so in this particular case ये resistance fixed है, ये resistance vary होगा, V out vary होगा, voltage of V plus vary, इसका वोल्टेज तुमने फिक्स कर दिया. तो फाइनली क्या होगा, इट विल कीप कंपेयरिंग और यू विल बी एबल टू मेक अ सर्किट विच विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डे एंड नाइट. You replace this LDR with thermistor, you will be able to make a circuit which will differentiate between a particular threshold of temperature, कि इस threshold से कम टेम्परेचर है तो हॉट है, उससे मतलब सॉरी उस टेम्परेचर से कम है तो कूल है, ज़्यादा है तो हॉट है, राइट. सो ऐसा कंपेरेटर बहुत जगहों पे यूज होता है टू फिगर आउट कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है. ठीक है, जनरली देयर इज अ यूज ऑफ दिस थिंग. बैटरी चार्जिंग सर्किट में भी यूज करते हैं. तो लेट मी सर्च इट. So there is an LM358 along with a relay to switch on the power supply and off. But again कर क्या रहे हैं, वोल्टेजेस को कंपेयर करके रिले को ऑन ऑफ करेंगे. वोल्टेज कमिंग फ्रॉम द बैटरी, वोल्टेज कमिंग फ्रॉम द चार्जर, दोनों को कंपेयर करो. वोल्टेज ऑफ बैटरी कम है, चार्जर का ज़्यादा है, तो रिले को ऑन कर दो, कनेक्ट हो जाएगा, बैटरी चार्ज होने लगेगी. जिस मोमेंट पे बैटरी ऑफ मतलब बैटरी ऑफ सॉरी वोल्टेज ऑफ बैटरी बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ द चार्जर, डिस्कनेक्ट कर दो. ठीक है, बीच में थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए, मैनेज करने के लिए डायोड वगैरह लगा दो, सो दैट देयर विल बी ऑलवेज अ वोल्टेज डिफरेंस जहाँ पे तुम कंपेयर कर पाओगे कम ज़्यादा को.
ठीक है, तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें करते हैं और चार्जर भी बना लेते हैं। सो अगेन कंपेरेटर यूज़ करते हैं। सो कंपेरेटर इज समथिंग जो हम यूज़ करेंगे टू इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली सेम सर्किट जो अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वी विल मेक एन ऑटोमेटिक नाइट लाइट यूजिंग LDR। तो तुम लोग की किट में LDR है। हम लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर ऑलरेडी पढ़ रखा है कि व्हाट इज अ वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, ये ऑलरेडी पता है, हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या होता है ये भी पढ़ रखा है, और अब ये हमें पता चल गया। तो विल क्रिएट दिस सर्किट ऑन ब्रेड बोर्ड फर्स्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ जाता हूँ। अब हम LM358 से क्या करेंगे, अब IC के बारे में हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें पता है। अब IC के बारे में और चीज़ें और डेटा सीट्स हम प्रैक्टिकली कर करके सीखने वाले हैं। सो व्हाट विल बी द मेथड कि इसको हम ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो IC को यूज़ कैसे करते हैं, मतलब IC को बेसिकली समझते कैसे यूज़ कर करके। सो वी विल इम्प्लीमेंट दिस LM358 ऑन ब्रेडबोर्ड। वी विल क्रिएट एन ऑटोमेटिक नाइट लाइट। एक बार जब ये ऑटोमेटिक नाइट लाइट बन जाएगी तो हमें IC थोड़ी और समझ में आने लगेगी। देन हम 555 समझने नहीं जाएंगे। 555 इज एन IC जिसके बारे में अब थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। हम इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल कुछ नहीं देखेंगे। सिमिलरली 7805, सॉरी जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर इट अगेन। 7805 भी IC है, वोल्टेज रेगुलेटर है, उसे भी हम यूज करने वाले हैं इन द चैप्टर ऑफ IC ओनली। बट IC को अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि अब तुम्हें IC पता है। अब हम क्या करना चाहते हैं, IC को समझना चाहते हैं। तो वी विल क्रिएट अ सर्किट यूजिंग LM358 ऑटोमेटिक नाइट लाइट। किस पे बनाएंगे, ब्रेडबोर्ड पे बनाएंगे। नाउ आई विल कंटिन्यू दिस। ब्रेडबोर्ड पे सर्किट काम कर गया। नाउ वी नो कि एवरीथिंग इज फाइन, बट ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बनाने के बाद वायर लूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ब्रेडबोर्ड इज अ प्रोटोटाइपिंग थिंग। अब अगर हमें पता है कि ये सर्किट काम करता है और वी वांट टू यूज इट डेली, थोड़ा रोबस्ट करना है, तो वी विल सोल्डर इट। ठीक है, तो हम ये सेम सर्किट को सोल्डर करके देखेंगे कि सोल्डरिंग कैसे करते हैं। सो अब हमारी जर्नी PCB साइड पे मूव होने लगेगी यूजिंग IC ओनली। ठीक है, तो ये सेम सर्किट जो वर्क करता है उसको LM358 को यूज करके सोल्डरिंग कैसे कर सकते हैं डॉटेड PCB पे। ये सर्किट जो पैटर्न हमने ब्रेडबोर्ड पे बनाया, सिमिलर पैटर्न वी विल क्रिएट ऑन डॉटेड PCB। ठीक है, विच विल लुक लाइक दिस। मतलब ये कंपोनेंट्स होंगे, ये डॉटेड PCB ऐसी दिखती है। सोल्डर करने के बाद इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ऐसा ऐसा एक परमानेंट सोल्डर्ड बन जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। मतलब ये अलग सर्किट है बट ऐसा परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, सोल्डर करने के बाद रोबस्ट हो जाएगा, वायर ढीले होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी विल मेक। और उसके बाद देयर विल बी वन असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब जिस दिन हम ये सोल्डर करेंगे क्लास में देखेंगे कि सोल्डरिंग कैसे करते हैं, व्हाट इज द फंडा ऑफ सोल्डरिंग। ठीक है, सो अब कल की क्लास में, तो आज की क्लास में हमें इतना करना है। अब कल नहीं है, परसों क्लास है। सो डे आफ्टर टुमारो वी विल हैव अ क्लास जहाँ पे हम ब्रेडबोर्ड पे ऑटोमेटिक नाइट लाइट बनाएंगे। देन वी विल डिस्कस कि सोल्डरिंग वगैरह कैसे होती है। ठीक है, हाउ टू टेक इट फ्रॉम ब्रेडबोर्ड टू डॉटेड PCB। तो सोल्डरिंग के कुछ कंसेप्ट देखेंगे, मैं तुम्हें सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा। देन यू विल हैव टू सोल्डर इट एट योर एंड आफ्टर द क्लास। कर सकते हो, साथ साथ में कर पा रहे हो, फिजिबल है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इट विल बिकम कि सोल्डरिंग क्या होता है। सो ब्रेडबोर्ड के बाद हम सोल्डरिंग देखेंगे यूजिंग सेम सर्किट, जीरो PCB पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देन वी विल डिस्कस कि 555 टाइमर IC से एक दिवाली लाइट मतलब ब्लिंकिंग पैटर्न का सर्किट कैसे बना सकते हैं। और सर्किट जिसको तुमने पावर दिया तो LED ऑन ऑफ हो पाए, जिसमें तुम ये ऑन ऑफ का टाइम पीरियड कंट्रोल कर पाओ कि ऐसा भी हो पाए। ठीक है, सो वी विल डिस्कस दैट। बट सोल्डरिंग अब तुम्हें आती है, तुमने कर लिया, तो दैट विल बी असाइनमेंट जिसको तुम करोगे, वीडियो ग्रुप में पोस्ट करोगे। और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में अगर किसी का नहीं चला, क्यों नहीं चला, दैट डिबगिंग वी विल डू। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल क्रिएट अ PCB। अब सोल्डरिंग भी आती है तो अब उसको प्रोफेशनली सर्किट में कैसे डिजाइन करते हैं। सो वी विल डिजाइन इट यूजिंग अ सॉफ्टवेयर ईगल। ठीक है, मोस्टली सेम सर्किट। कौन सा सर्किट, ऑटोमेटिक नाइट लाइट। ठीक है, ऑटोमेटिक नाइट लाइट मैं करके दिखाऊंगा। तो हमेशा मैं तुम्हें एक सर्किट का एग्जांपल दूंगा, हमेशा तुम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए घर पे उसको इम्प्लीमेंट कर लो और फिर और लर्निंग के लिए 555 वाला करोगे। ठीक है, सो 555 को तुम सर्किट स्कीमेटिक में डिजाइन करोगे। देन वी विल क्रिएट वन मोर सर्किट इन PCB ओनली, और उसका नाम होगा मोबाइल चार्जर 5 वोल्ट।
ठीक है, हमारे पास एक 9 वोल्ट का अडाप्टर है, 9 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं एंड देन उससे मोबाइल चार्ज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, दैट विल बी वन डेमो सर्किट। तो हम ऐसे आईसी को ले लेके मूव करने वाले हैं। जर्नी समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Getting? Okay, so from now onwards, your part, your end will increase. आज तक मेरा ज़्यादा रहता था, अब तुम लोगों को परफॉर्म करके देखना पड़ेगा if you really want to understand it. Otherwise मैं तो डेमो दे ही रहा हूँ, ठीक है? So from now onwards we are moving. हाँ, तो अब 34 है, तो आईसी के बारे में मैं इतना ही डिस्कस करना था, ठीक है? तो अभी तक जो भी डिस्कस किया आईसी से, किसी को कुछ डाउट है क्या? Anyone wants to ask anything? No, sir. Yes, no? Am I audible? Yes, sir, you're audible. No, sir. Yes, sir. No, ठीक है, sir, no doubt. अब जर्नी समझ में आ गई कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड विथ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जिसमें अब सब कुछ कवर होगा। वी विल बी रीडिंग वॉट एवर टिल नाउ वी हैव कवर्ड, ठीक है, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सारे कंसेप्ट लगेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स। फिर लेट मी शेयर द स्क्रीन, सो लेट मी शो कि क्या होने वाला है अब। सो राइट नाउ वी आर हियर, ठीक है, ये तीनों के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया। अब नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिजाइन अ सर्किट ऑन ब्रेडबोर्ड, फिर जीरो पीसीबी पे सोल्डरिंग देखनी है, पीसीबी डिजाइनिंग मोस्टली 2 सेशंस लगेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद द माइक्रो कंट्रोलर पार्ट, 1-2 थियरी सेशंस जहाँ पे हमें वो कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। देन वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स, इस तरीके से इतने सारे प्रैक्टिकल्स है। देन वी विल स्टार्ट विद द आईओटी पार्ट, ठीक है। सो if we keep continuing like 2 hours and few from next week onwards अगर हम daily करते हैं, so it will take these many sessions, these many days. So the question is कि अभी यहाँ पे let me check just a minute, अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट सब है, ठीक है, एक्सेप्ट मयूर, एवरीवन इज देयर, बट मयूर का कॉम्प्लीमेंट वेदांत यहाँ पर है, वेदांत पीएनआईटी से है ना, तो मोस्टली टाइम मैच हो जाएगा। सुजल है यहाँ पे, हाँ, विश्वैन है, हाँ। सो सबके हॉलीडेज चालू हो गए हैं क्या? नो सर। किसका नहीं है? सर मेरा सुजल हाँ, को ठीक है, तो सुजल तुम्हारी क्लास कब से कब तक है? 30 तक चलेगा सर। नहीं, टाइमिंग? 13 से 30 हमारे अभी सेमेस्टर होने वाले हैं। ओके, और टाइमिंग क्या है अभी क्लासेस की? सर वो रेगुलर वाला 10 to 6। 10 to 6 है ना, ठीक है, तो मतलब डेली वी कैन हैव सेशंस फ्रॉम 7 to 9 जो अभी चल रहा है, राइट? यस सर। ठीक है, सो 7 to 9 व्हाट विल डू कि हम डेली 7 to 9 सेशन रखेंगे। 6:30 पॉसिबल है क्या एवरीवन? Sir, it's fine. सुजल? यस सर फाइन। हाँ, तो we'll move it to 6:30, ठीक है, so that at least we get 2.5 an hour. So what we will do is like थोड़ा फास्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस So सर। डेली सेशन में द थिंग विल बी कि तुम्हें परफॉर्म करने के लिए एक एक दिन ही मिला करेगा, सो यू हैव टू बी पंक्चुअल या फिर यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग, अदरवाइज मैं डिक्लेयर कर देता कि कल से या फिर नेक्स्ट वीक से डेली क्लासेस होने वाली है, ठीक है, चलेगा सबको? So from next time onwards we will be having classes from 6:30. ये वीक मेरा प्लान हो गया है, तो इस वीक में हम डेली नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स व्हाट वी विल डू इज लाइक डेली 6:30 to 8:30 या 9 तक हम सेशंस करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Okay then. Yes, sir. Okay, so we will stop here. किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, else we will basically next session में I will directly start making a circuit. And if possible you guys keep everything ready with you and तुम भी साथ साथ में कर लेना जब मैं कर रहा हूँ, है ना, अदरवाइज रिकॉर्डिंग देख के करना पड़ेगा, ठीक है। सो यस Yes. ओके, सो व्हाट आई विल बी नीडिंग फ्रॉम यू कि एक
फीडबैक फॉर्म ग्रुप में है, फिल इट, ठीक है। एंड इज लाइक एवरीथिंग विल चेंज फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। अभी तक का सेशन वाज कंसेप्ट ज़्यादा हो रहे थे बिकॉज बेसिक्स कवर करने थे। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड इट विल बी मोर प्रैक्टिकल, पैटर्न विल चेंज। सो टिल नाउ वाले पैटर्न के लिए गिव फीडबैक्स व्हाट एवर वाज गुड, व्हाट एवर वाज बैड, एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स पैटर्न विल चेंज। तो जब 2-3 दिन क्लासेस हो जाएंगी तब मैं फिर से फीडबैक्स मांग लूंगा। ओके, Yes, sir. बाय बाय, गुड नाइट, Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.